يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. اچھا جی اے دیکھ لو جی. اچھا وہ بندہ سوال کرنے آیا ہے، جو بندہ سٹریم چلا رہا ہے اس نے اس سے سوال کر دیا ہے. کمال. اچھا پھر دیکھیں کہ اس نے جواب بھی دے دیا ہے. جواب بھی اصل میں اس نے جو اگلا سوال کرنا تھا وہ بڑا خطرناک تھا، کیونکہ اس نے خلیفہ پہ سوال کرنا تھا اور یہ اس کو اس پہ جانے دے رہا، اس کا مائک میوٹ کر رہا ہے. یہ کہتے ہیں جی جماعت احمدیہ کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. واقعی جب وہ ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہو تو کیسے ٹک سکتا ہے؟ کیسے ٹکے گا؟ ہم نے جا کے آئے نا دیکھا ذرا ہماری سٹریم میں تو پھر آپ کو ہم میٹھا ڈال کے بتائیں گے. ہاں جی. مگر انہوں نے تو اپنی سٹریم کے اندر ہمارا نام لینا ہی چھوڑ دیا یوزی آصف کے بعد. عمران جٹ صاحب کیا کہیں گے؟ جٹ بھائی کا مائک کا مسئلہ، عمران بھائی کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. یا میرے آ رہا بھی 2 منٹ لگتا ہے. بوائل انڈے کھا رہے ہیں، سردی بڑی بار آج کل. کھان پین کی تو صحت ہی چلو نظر جی آ رہی ہے. آگے چلتے ہیں جی. اچھا ایڈمن صاحب آگے چلائیے جی. میں جواب دے دوں؟ جی جو سوال میں نے بڑا کلیئر جواب دیا ہے کہ جی ایز پر بیسٹ آف مائی نالج. ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے. یہ ہو گیا ہے میرا جواب، میں اپنی کسی بات سے نہیں بھاگ رہا. میں نے بڑا کلیئرلی آپ کو اپنا موقف دے دیے، اپنا جواب دے دیے. اب آپ جتنے مرضی بزرگان دین کے وہ لے کر آئے، سب کچھ لے کر آئے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا ایک سٹینڈ ہو سکتا ہے جو لیک ویڈیو کے اوپر آپ لوگ کے خلیفہ. چلیں دیکھیں خلیفہ کا نام ہی لیا اس نے ابھی. اچھا واضح ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کا یہ ہے، میں نے اپنا موقف کھل کے بیان کر دیا، اور ہر بندے کو اپنا موقف بیان کرنے کا حق ہے، ٹھیک ہے. مگر اس کے باوجود یہ شخص وہ الفاظ اس کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا کہ جو اس کی مرضی کے ہیں. ایسے نہیں ہوگا. جو ہی خلیفہ کا نام لیتا ہے جی. خلیفہ کا نام لینا بھی ان کے ہاں آج کل گالی بن گیا ہے. جس طرح ہم کہتے تھے نا قادیانی، تو مجھے کسی نے کہا کہ یار آپ انہیں قادیانی نہ کہا کریں، یہ اس سے چڑھتے ہیں. اور میں نے کہا یار مرزا غلام احمد تو ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ بڑے فخر سے قادیانی لکھتے رہے، تو کیا یہ گالی ہے یا کیا ہے؟ ان کا شہر امن ہے. میں مکہ اور مدینہ میں نہیں رہتا، خدا کی قسم میرے نام کے ساتھ اگر کوئی مکی یا مدنی بولے تو میں فخر سے پھولے نہ سماؤں. یہ کیسی قوم ہے کہ خلیفہ کے نام پہ بھی اس کا مائک بند کر رہی ہے کچھ شرم ان کو؟ تسی دعا کرو کہ وہ تے خود مائک بند کر رہے تھے. اللہ کے لیے عمران جٹ صاحب دا مائک ٹھیک ہو جائے. عمران جٹ صاحب میرا مائک ٹھیک ہے سر. تو سر پھر کتنے چل جاندے ہو؟ میں سن رہا. دیکھو گل پتا کی ہے، دیکھو ایک تے ڈڑائی دی حد ہوندی. وہ کہہ رہے جی میرا صاف موقف ہے، اسی پاواں وچ بزرگان دین لے آؤ، یہ میرا اپنا ایک موقف ہے. دیکھو یہ گل زیادتی ہے، یہ غلطی ہے بھائی دی قادیانی نو ایسی گل کرنا. بھی واضح موقف انہوں دی شیڑ ہے نا. تسی کیوں انہوں نے کیا ہے ساڈا واضح موقف؟ انہوں نے گل اگے پیچھے لائی رکھو. جس طرح وہ گل ٹوردا تسی مگر ٹر جاؤ، وہ کہنے گے ٹھیک ہے. ہوں تسی واضح ہی موقف دے چھڑیا، بیچارہ کو کی گل کرے ہو؟ یعنی آپ پھر بے شرمی ہے نا. یعنی جو آپ نے کل بات کی تھی کہ جی علامہ صاحب نے، اور کوئی بات نہیں تھی ایسی، مگر جو علامہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ یہ قرآن پڑھ کے سنا دیں میرے کزن کو، اس کے بعد اس نے بھی یہ وہی والی بات ہوگی لگتا ہے آج بھی. دیکھو جی قادیانیاں نال گل کرن دے بھی کچھ ادب و آداب ہوندے نے سر. یہ منڈیاں نو پتہ ہی نہیں، پھر کہندے نے سانو سٹریم تے موقع نہیں دیندے. بھی پہلی گل ہے تسی انہوں نے اے بھی نہیں کہنا کہ سانو قرآن دی آیت پڑھ کے سنا. ٹھیک ہے، غلط گل ہے. جدوں انہاں دا خلیفہ نہیں صحیح پڑھ سکدا، وہ بچارے کس طرح پڑھن گے؟ اے بھی نہیں کرنا. اس تو بعد واضح موقف بھی نہیں دینا. واضح موقف انہوں دی شیڑ ہو جاندی ہے.
تو چند احتیاطی تدابیر لازمی نے. ہمارے بھائی بھی بھائی وہ ذرا پلیز دھیان کیا کریں یار. وہ منڈے پھر کلپ دینے کہندے نے ویکھو یار وہ علمی گل نہیں کرتے. او یار کام سن میری او اپنا کی نا تیرا او جری اللہ کوئی نکی جی نوٹ بک بنوا لو تسی سارے سوچ کے قادیانیوں سے بات کرنے کی احتیاطی تدبیریں تے شائع کرا دو. موضوع شوضوع سے تسی ڈسکس کرنا ہی نہیں نا کہ بھی موضوع رکھو شرائط کرو. پہلے اپنی احتیاطی تدابیر رکھ لو. جی میں نکی بکلٹ نہیں ہوندی جوسر گرائنڈر لو کس طرح استعمال کرنا ہے چھوٹی بکلٹ نکی نکی دیکھو تسی پاکٹ بک چھپوائی ہے اپنی مطلب احتیاطی تدابیر والی بکلٹ بھی چھپوا لو. ایک ہر قادیانی نو پڑھاتی گلے کی تویز کر کے پاکٹ بک نمبر 2 ٹھیٹ انسان نے وہ کہہ رہا میرا صاف موقف ہے. اس تو اگے بغیرتی ہے وہ کر رہے ہیں. شریف بندہ ہوندا ٹھیک ہے یار تیری گل آ گئی سامنے اے ہن تو میرا موقف سن لے. اے ہوندی ہے ٹیبل ٹاک. کیوں جی جی اچھا عمران جٹ صاحب آپ نے بڑی زبردست ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائی ہے کہ واقعی ٹھیک ہے ہمارے ناظرین کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. جس طرح آج کل کرونا وائرس مختلف انداز میں حملہ آور ہوا ہے پوری دنیا پہ. کبھی کوئی نکل کے آ رہا ہے کبھی کوئی نکل کے آ رہا ہے. مرزا قادیانی کا بھی یہی تھا, کبھی کچھ نکال دیتا تھا کبھی کچھ نکال دیتا تھا. جماعت چلا لی احتیاطی تدابیر ہی کوئی نہیں. حالانکہ کوریئر سروس والے دی احتیاطی تدابیر نے وہ ڈبے تے گلاس بنا کے توڑیا ہوندا نشان رکھیا ہوندا بھی فریجائل اگلا احتیاط کر لے اتلان تو پہلے کسی شاید ٹوٹ نہ جاوے. وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. منڈے دیکھو ایویں نہیں کلپتے یار زیادتی ہوندی ہے تے کوئی بولدا یار. دیکھو میں سمجھ گیا کہ او چیخن دی وجہ کی سی. مینوں ویسے ادو سمجھ نہیں میں تسی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سمجھا دیتی ہے. تے بٹ صاحب کی کہندے ہو جیڑی مختصر تسی رائے دیو جی جٹ صاحب نے گل آکی ہے. جٹ صاحب اصل جو کچھ کہہ رہے ہیں نا میں تمہیں دسیا سی انہوں نے 10 نمبر دا پکڑے ہے کہ انہوں نے گل ہے کہ ایک پاکٹ بک دوم بڑھان کہ ہماری سٹریم میں اگر اب سے بات کرنے کے قاعدے نمبر 1 واضح بات نہیں کرنی, نمبر 2 سچی بات نہیں کرنی, نمبر 3 سیدھی بات نہیں کرنی, نمبر 4 خلیفہ کا نام تک نہیں لینا. اس طرح کوئی 100-200 بڑھان اپنے قاعدے ضابطے انہوں نے پیچھے ٹانگ کے نا تو پھر سٹریم کریا کرا. ایک مین گل تو تسی کہنا ہی بھول گئے. جب چاہیں آپ کو کک آؤٹ کر دیں گے, ہم جب چاہیں ہم آپ کا مائک میوٹ کر دیں گے. یہ سارے قاعدے کلیے ہیں. اس کے بعد اپنی سٹریم میں بولیں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اچھا ایک گل تو جیڑی اصل عمران جٹ صاحب نے کہ وہ تو بھول ہی گئے ہو کہ قرآن پڑھنے کا نہیں کہنا ہمیں. توبہ جی توبہ یہ غلط گل ہے نا جی. چھیڑ ہے جس طرح میں مثال دیتی تھی گنجے کے کنگھی کر دے وہ یہ اوزار وہ کام دے نہیں چھیڑ ہے نا. دیکھو نا ہو سکتا ہے کہ خلیفہ اخراج کر دینا جو کچھ صحیح قرآن پڑھے تھے خلیفہ اخراج کر دے گا کہ منو نہیں آمدہ تو کیوں صحیح پڑھے. میرے خیال سے ایک شرط یہ بھی رکھنی چاہیے کہ ٹھنڈی اور خشک جگہ پہ رکھیں. وہ فریجائل چیز ہے نا ویسے ٹوٹ جاتی ہے بڑی جلدی. اچھا جی آگے چلیں جی. سر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ جو آپ چار گواہوں کی بات کر رہے ہیں یہ بالرضا کے لیے ہے, بالجبر کے لیے نہیں. میں لمبی آپ کے ساتھ یہاں پہ آرگومنٹ کے لیے نہیں آیا. چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو دوبارہ ایک چیز دکھا دیتا ہوں. میں آپ کا مائک میوٹ مجھے کرنا پڑ رہا ہے, میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آپ نے کہا جی وہ جناب رضا کے لیے جناب جبر کے لیے چھوٹی سی بات. میں آپ کو نہیں غلط بات ہے. میں نے آپ کو پہلے یہ بات کی تھی, حوصلہ میں رکھوں گا. آپ جو سوال کے مطابق جواب نہیں دے میں نے پہلے یہ تمیز بند. اچھا جی کہندا ہے پھر واضح دیکھیں کتنی دفعہ ہمارا دوست جو ہے وہ اس موقف کو بیان کر رہا ہے اور پھر آخر نو کہنا پہ گیا کہ دیکھیں سر کہہ رہا ہے ایسے بندے کو اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی حوصلہ رکھے. وہ کہہ رہا ہے حوصلہ میں رکھوں گا. وہ کدو حوصلہ رکھے گا جدو واش روم جائے گا ادو حوصلہ رکھے گا. یہ کہڑی گل سٹیم تم نے سجائی ہوئی ہے, لنک دیا لوگوں کو. یا تو لنک لوگوں کو شو ہی نہ کرو, اکیلے بیٹھو. جیسے اڑانا کہہ نا وہ عامر لگیا ہوا ہے, ڈاکٹر مبشر لگیا ہوا ہے, قاسم شاہ لگیا ہوا ہے, محمود شاہ لگیا ہوا ہے, سارے لگے ہوئے نے کلے کلے اپنے اپنے وقت تے لگے ہوئے نے. یا تو تم بھی اکیلے لگے رہو, کسی کو لنک نہ بھیجو.
जब बेचते हो तो फिर हौसला तो रखो, हौसला है नहीं है, कंजर खाना खुला हुआ है। हाँ हाँ जी। अच्छा एक मिनट, मैं इमरान जट साहब जान तो पहले मुख्तसर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਫਲਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, महमूद शाह लगे है ਤੇ डॉक्टर ਉਹ लगा है, आमर लगा है, ये आमर के बारे में कोई 75% रिपोर्ट मुझे पहुंच गई, ये कौन था? इसका तल्लक इमरान जट साहब भी जानते हैं कि एक नवाब था कादियानी खानदान के अंदर जहां इनका कोई रिश्ता रुश्ते हुए थे, तो ये उसके खानदान में से आगे है। तो अच्छा ये लगे हुए का क्या मतलब हुआ बाबर भट्ट साहब? जमात का क्या मौक़िफ़ है? खलीफा जो जबान समझता था भतीजी ने उसी जबान में बात की है, और खलीफा को समझ नहीं आ रही थी कि तल्लकात कायम करने के काबिल क्यों नहीं। हालांकि ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है ये मिर्जा फैमिली में, मिर्जा खानदान में ऊपर से आ रहा है, बदरजा अतम मौजूद है। मिर्जा साहब को भी ये मसला था, उनको भी सही इरेक्शन नहीं होती थी, और आगे भी से ये इनके मसले हैं, ये इनको इरेक्शन नहीं होती, तो उसने कहा कि उसको इरेक्शन नहीं होती, मतलब यह है कि उसका उठा ही नहीं था, ये है अगर वाज़े अल्फाज में। तो खलीफा को समझ आ गई थी और लड़की को भी सारा पता था कि ये है, तो इनमें ये मसला है, और ये उसके साथ नहीं हुआ तो मैं बच गई और मैंने स्प्रिंट मारी फिर वहां से, और जाके फिर क्या कर रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं कि बच गए हैं। नहीं ये जो खास करके इसमें कादियानी मौक़िफ़ क्या है कि वो लगे हुए, कहाँ लगे हुए हैं, क्या मतलब कोई बताएंगे इस बारे में? आयाता खास में लगे हुए हैं, और आयाता खास में उसने कहा है जो कंजर खाना खुला हुआ है, जो रेड जोन एरिया बना हुआ है। मैं आपसे कुछ कुछ और पूछना चाह रहा हूं कि कादियानी किसी कादियानी ने आपको बताया कि ये लगे हुए से क्या मुराद है, ये वहां क्या लगे हुए थे? नहीं, ये बेचारे अब इस मौजू पे बात ही नहीं करते। नहीं आपने भट्ट साहब आपने बताया हुआ कि ये वो कादियानी ने क्या कहा था, लगे हुए थे मुराद क्या है? उसने ये कहा था कि ये जो आता खास का नाम लिया गया है ना, तो इससे हम ये मुराद लेते हैं, मुराद तो सारा ये सारे का सारा धंधा और सारे का सारा अकीदा ही मुराद पे खड़ा है, हम ये मुराद लेते हैं, हम ये लेते हैं। तो इससे ये है कि वहां पे रेनोवेशन हो रही थी, उसने कहा था रेनोवेशन ये है कि आप कोई मरम्मत करते हैं ना किसी चीज को, या आराइश उसकी करते हैं, नई चीज बनाते हैं, तो वो ये होती है रेनोवेशन। पुराने घर को आप नया कर रहे हैं, या उसमें जो समझ रहे हैं। तो वो रेनोवेशन हो रही थी, वहां पे यही लगे हुए थे, ये सारे वॉलंटियर काम कर रहे थे, ये कादियानी मौक़िफ़ लेके आया, ये पैसे के बगैर काम कर रहे थे, पैसा नहीं ले रहे थे। तो ये शाह महमूद साहब 71 साल की उम्र में वहां पे वॉलंटियर कर रहे थे, और वहां पे ईंटे शींटे पकड़ा रहे थे, सीमेंट की तगारियां लेके जा रहे थे, सीमेंट की बोरियां लेके जा रहे थे, इस काम में लगे हुए थे। हाँ जी, इस काम में लगे हुए थे। जी इस रॉयल फैमिली के लोग ये काम कर रहे हो, क्या बात है, क्या बात है जी। कसरे खिलाफत के अंदर मिर्जा के साले जो इस वक्त खरबोपति हैं वो जनाब सीमेंट की बोरियां उठा रहे हैं, लगे हुए हैं। इमरान जट साहब किधर चले गए आप? जी मैं 1 मिनट बात कर सकता हूँ? जी अच्छा जी कर सकते हैं जी। मैं अभी फारग हुआ हूँ, मैं बात सुनता रहा हूँ आपकी। इसमें यह है कि जो करने वाली बात है वो एक तो ये है कि ये अकेली एक यही खातून नहीं कि जिसने ये, इससे पहले बाबर साहब को पता है यहाँ कनाडा में कौन कौन सी खवातीन हैं कि जिन्होंने वो सारा कुछ मामलात हाईलाइट किए हैं। तो जब इतनी फ़र्ज़ करें कि लेडीज़ इवन जो है ना वो कंप्लेंट कर रही हैं या कोई बात कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि जो बंदा अपने आप को हेड क्लेम करता है या कहता है जी कि मैं इनका बड़ा हूँ, उसको ये बड़ा सीरियस जो है इसके ऊपर जो है वो मतलब इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए, और उस जैसा होता है ना जी कि वो सारे मेजर्स लेने चाहिए कि इन मामलात को कैसे रोका जाए। उस पर तो ये इनकी कम्युनिटी से कोई बात करता कोई नहीं, उल्टा ये है कि अभी तक जो है ना उसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। एक बात तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक नहीं है ये, सिर्फ ये अकेला एक केस नहीं है। आप ये देखें कि सिर्फ सोशल मीडिया पर जिन्होंने अपनी इज्जत को एक तरह से, जब कोई खातून आके अपने बारे में ये कहती है ना कि मेरे साथ ये ज्यादती है, इसका मतलब है कि उसने अपनी इज्जत खुद ओपन कर दी है, इस हद तक वो मजबूर थे। वरना जाहिर है कि हर इज्जतदार बंदा जो है वो छुपाता है अपने जो भी अच्छा बुरा हो जाए। तो जब इस सीरियसली इतनी ख्वातीन ने जब कंप्लेंट की है
किसी खास ग्रुप के बारे में, लोगों के बारे में, तो इनको खुद इसका बड़ा सीरियस लेना चाहिए। सेकंड ये है कि फिर जो आगे इनकी जो तशरीह हैं, जो बातें हैं, जो कहानियाँ हैं, वो सिर्फ सच्ची बात यह है कि उसमें कोई आउटकम उसकी नज़र नहीं आती कि कोई बंदा इनसे तवक्को रखेगी जी कि ये सिस्टम जो है उन लेडीज़ को सपोर्ट करेगा। उनको सुजेस्ट करें कि जी वो जो भी उनका जो लोकल कानून है वो इसकी बजाय उस लोकल कानून को, जो मुल्की कानून को अप्रोच करें, उन अदारों को अप्रोच करें ताकि उनको कोई रेमेडी मिले। तो जहाँ तक इनकी बात है, आप कह रहे थे, अभी मैं सुन रहा था कि कोई नवाब साहब जो थे उनको बेटी दी, वो शेख साहब ने वो खूब जो है ना वो उस साहब को बयान किया है कि नवाब को बेटी दी, बेटी और उस नवाब साहब की एज में बहुत बड़ा जो था वो डिफरेंस था। उस डिफरेंस की वजह से उन्हें ये था कि ये ना हो कि जी कि ये नवाब साहब जो है वो बेटी को कल को थोड़ा अरसा गुजार के तो छोड़ दें। उन्होंने कई हज़ार जो था वो हकमेर भी लिया और साथ में ये है कि स्टाम लिखवाया। इस हद तक बेतवारी थी या इस हद तक जो थे वो नहीं रिलाय कर रहे थे अपने उन सहाबा पर जी के, जो उन्होंने कहा जी कि स्टाम भी साथ में लिख के दो, फिर यह है कि ये निकाह होगा। मतलब ये रियलिटीज़ हैं। और फिर आज तक उस बेटी को बड़े फख्र के साथ, बेटी के साथ लफ्ज़ नवाब लिख रहे हैं। कभी सुने आपने कि औरतें जो है ना वो अपने आप को, या क्यों, ताकि है कि ये बड़ा फख्र हो जी कि वो हमारी बेटी जो है वो नवाब के घर में है। ठीक है, नवाब मुबारका बेगम, मेरे ख्याल को आप भी ज़रा पढ़ते हैं, सारी तहकीक करते हैं, बेटी के साथ नवाब लिखा हुआ है। इतना शौक था मतलब वो नवाब बनने का या नवाब लिखने का। ठीक है, तो ये मतलब वो चीज़ें हैं कि जो ख़वातीन के मामले में जब देखते हैं किसी ग्रुप का एटीट्यूड या रवैया, तो शुरू से लेके आज तक वो जितनी भी ख़वातीन की एक सीरियल है कि जिनको जो है, जिनके साथ जो है ये ज़्यादतियाँ होती रही हैं, किसी को अश्तार किसी के खिलाफ दिए गए, वो भी एक बहुत बड़ी करैक्टर असैसिनेशन है कि आप अपने रिश्तेदार के बारे में खुद ही अश्तार लगा रहे हैं कि जो कि ये मेरी होकर रहेगी। तो वो इखलाकियात की बातें अपनी जगह, कानून की बातें अपनी जगह, और आजकल तो हाज़र मतलब प्रेजेंटली जिसका कहते हैं इन पर्सन ख़वातीन जो हैं वो कंप्लेंट कर रही हैं सोशल मीडिया पर। इनको बड़ा सीरियस सोचना चाहिए, बजाय कि जी कि आपके साथ जो है ना ये मुबासे करें और तो इस पर उन्हें कहें कि गौर करें। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया इदरीस भाई, मैं 1 मिनट सिर्फ लूंगा। असल में इस चीज को कहते हैं मकाफात अमल। ये दूसरों की बेटियों के इश्तिहार लगाते रहे हैं सारी जिंदगी, आज इनकी अपनी बेटी के साथ ही हो गया है और सारी दुनिया देख रही है। अगर आज मोहम्मदी बेगम जिंदा होती तो उसके कलेजे को ठंड पड़नी थी, वो जलता हुआ कलेजा लेके दुनिया से गई है। ये मकाफात है। आज मिर्ज़ा गुलाम अहमद की ज़ुर्रियत सामने बता रही है कि 36 साल वो अवस का निशाना बनती रही है, और कौन बनाता रहा है? अपने बंदे। ये तो शम्स भाई होते तो कब के पता नहीं क्या क्या हो चुका होता। और दूसरी जो बात आपने की है कि ये जो खवातीन है उनकी तो सुनवाई नहीं है ना, उनके बारे में तो सीधी बात है कि वो झूठ बोलती हैं। असल में ये लड़की इनके अपने खानदान से, अल्लाह ताला ने घर से एक फरिश्ता सिफ्त इंसान को उठाया है जो इस खिलाफत के पर्चे उड़ा के रख देगी। और जो नुकसान हो चुका है, यकीन करें बड़ा नुकसान हो चुका है। ये तो अब टांके लगा रहे हैं और तो कुछ भी नहीं कर रहे। जी शम्स भाई साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी जबरदस्त बात आपने कही। मैं भी यही कहने लगा था कि उन्होंने तो सिर्फ इश्तिहार दिए थे, यहाँ तो सोशल मीडिया की बरकत से इनके अपने घरों तक इनके बच्चे बातें कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये जो मसूद शाह है ये कौन है, मसूद शाह ने ऐसा क्यों किया, और खलीफा साहब ने उसका फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया। तो बहरहाल ये तो अब घर घर की बात इनके बन चुकी है। हमसे ज्यादा इनके घरों के अंदर ये बात उठ रही है, हमसे ज्यादा इनके बच्चे इनसे सवाल कर रहे हैं, इनकी बच्चियां सवाल कर रही हैं कि ये जो शम्स भाई साहब आपको याद होगा, मैं माजर चाहता आपको रोक रहा हूं, कि कई बार आपके शोज में मैंने ये बात की कि अगर आज मोहम्मदी बेगम जिंदा होती और ये दौर होता तो उसके साथ क्या होनी थी, या आज इनकी किसी लड़की के साथ कोई ऐसा करे सोशल मीडिया पे तो क्या होगा। ऐसा लगता है कि अल्लाह ने बात सुन ली और ऐसा ही हुआ है जिस तरह होना चाहिए था।
ये महमूदी बेगम के बदले में इतनी नस्लों के बाद ये कुछ हुआ है इनके साथ। वो बेचारी माँ उसको बाहर नहीं निकलने देती थी, 13-14 साल की बच्ची जिसने गुड़िया के साथ खेलना होता है, जो ईद पे पिंगे डालती हैं बच्चियां, जिनको पता ही नहीं होता शादी क्या है, जो भी बुलूगत की उम्र को नहीं पहुंची थी, इसने लुधियाना तक कहां तक उसको बदनाम कर दिया और उनको पट्टी में लेके जाने पड़ा कि इसकी शादी कर दे। ये ना हो कि वहां तक बात पहुंच गई तो बच्ची की शादी मुश्किल हो जाएगी। ये इसने चाल चली थी, इतना बदनाम कर दो कि कहीं पे कोई इसका रिश्ता ही ना मांगे। आज मिर्जे की ज़ुर्रियत ये बता रही है कि 36 साल तक वो मुसलसल दरिंदों की हवस का निशाना बनी है। आज ये मिर्जा कादियानी की बेटी है जी। मगर हम यहाँ ये कह देंगे, हम यहाँ ये कहेंगे कि अगर ये निदा इस कल्ट को छोड़ती है, वहां से निकलती है, तो इस्लाम इसके लिए राहें खोलता है, इसके लिए रिश्ते की राहें भी खोलेगा। सारी राहें इस्लाम ने इसके लिए खोली हुई हैं अगर इस कल्ट को ये छोड़कर। जी इमरान भाई, इस तरह के मिर्जा साहब एक कमर्शियल ज़हनियत के मालिक सी, इश्तिहारबाजी सही, उन्होंने रिश्ता बड़े कमर्शियल तरीके ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਲਾਦਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪਿਸਰੇ ਮਾਊਦ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਐਸਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਘਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੀਵੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਮੂਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਯੂਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਖਤ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰੁਕਿਆਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਐਡੇ ਸਾਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਨ 2021 'ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦੇ ਉਸ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਲੰਘ ਪੈਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਬਈ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਕਮਰਸ਼ਲ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, उस हिसाब नाल देखो कि हजरत साहब हर चीज बजरिया इश्तिहार उदा बाबेला करते सी, तो उनकी तरफ ये नॉर्मल चीज थी। उनके हिसाब से जाके अगर आप उस पर उनको हूट करेंगे कि यार तुसी कुड़ी दे इश्तिहार लाए, यकीनन उनको बुरा लगेगा, कादियानी दोस्तों के दिल दुखेंगे, क्योंकि उनके यहाँ ये मामूल की बात है। ऐ भी एहतियात करनी है कल तो। ठीक कह रहे हो कि इन्होंने बिल्कुल एहतियात सही दसी है। इमरान जट साहब, मजे की बात यह है, फिर वो इश्तिहार जब देते थे बीवी प्रेग्नेंट हुई थी और किसी को पता ना, पूरे माशरे को पता चलता था कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, और फिर कहते थे मुंडा होगा, हो कुड़ी पड़ती थी। असल में उसकी वजह थी, इसके पीछे भी रीजन थी कि मिर्जा साहब को पता था कि बस वो मेरी मिसिज प्रेग्नेंट हो गई है, अब ये नहीं पता वो हुई कैसे है। तो वो बस गलती कर जाते थे, कहते थे मुंडा होया कुड़ी हो पैंदी, फिर कहते थे नहीं अगले लाम च होइएगा, फिर नहीं आया तो मैंने कौन सा क्या इस इल्हाम से। ये चलते चलते इल्हाम आगे चलते रहे। बड़ी पते की बात आपने बताई है कि कादियानी कुतुब ये पढ़े तो उनको पता चल जाए कि मिर्जा साहब पीछे क्या कुछ करते रहे हैं। इसलिए फिर ये ऐसी बातें ना करें, इनको बुरी भी ना लगे, ये थोड़ा सा फिर समझ जाएंगे यार ये तो हमारे मिर्जा साहब करते रहे हैं, कोई ऐसी हमें ये छेड़ नहीं रहे, ये हकीकत बयान कर रहे हैं। जैसे मौलाना जफरुल्लाह शाह साहब ने हकीकत बयान की कि मिर्जा कादियानी जो था वो 15 साल की बच्ची के बारे में इश्तिहार देता रहा, सारा कुछ करता रहा। तो फिर बहरहाल बर्दाश्त तो इनसे अभी भी नहीं ये बात हुई, मगर फिर भी इनको कुछ पता चल जाएगा, वाकयात याद आ जाएंगे। अच्छा यार एक गल हो रहा है, मुंडे की शोखी में सुनी सी, ये देख लो मौके का फायदा उठा लो, मौके का फायदा उठा लो, फिर ये तुम्हें मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यार ये गल करने वाली कोई बंदा पिछे तेन पता लग गया कल तेन फांसी है, मतलब उन्होंने तू कह रहे इस तो बाद मौका ही नहीं मिलना। जरीउल्लाह अजीब शोखा जा बंदा है यार, अस्तगफिरुल्लाह है। ए ते फांसी जिन्होंने मौत की सजा है उन्होंने पता होंदा भी कल मेरा आखिरी दिन है, मैं सवेर दा सूरज चढ़दिया नहीं वेखना, और चल मौजा लुट ला, जो पुछना पूछ ला, मैं मौत च। वाह यार इंसान जी, आगे सूरत हाल हो जी है कि पता नहीं अगुए चल सकते नहीं, नहीं चलते। एक और बात बताऊं आपको जी, मैंने कहा अगर इजाजत हो तो एक बात करूं।
बात ये करनी है कि जो आप इलामात की बात कर रहे हैं ना, या पेश गोइयों की, ये एक जो है ना वो जर्मनी में है, अब्दुल गफ्फार जमा साहब, भट्ट साहब को तो यकीनन पता होगा। जी जी, ठीक है, उसने अपना दायरा फिरका बनाया हुआ है, और वो भी जो है ना वो कहते होते मेरी पेश गोई वो फलानी पर पूरी होगी और होकर रहेगी। ठीक है, तो वो खुद उसका क्लेम ही ये है कि मिर्जा साहब की जो आखिरी पेशगोई थी वो पेशगोई उनके जीते जी पूरी नहीं हुई, जिसमें उन्होंने वो नाफला वाला लफ्ज यूज किया था, और वो पेशगोई मेरे ऊपर पूरी हुई है। वो मतलब इनकी पेशगोइयों का सबसे बड़ा सबूत है। इसलिए ये किसी से क्या सबूत मांगते हैं, उन्हें कहेंगे जी कि वो अपने उसी से ही पूछ लें कि जी कि जो उसका क्लेम है अब्दुल गफ्फार जमा का, वो कहते हैं जी कि ये फलां जो इलाम है वो उनका नहीं पूरा हुआ जीते जी, और वो मुझ पर आप पूरा हुआ है, और मैं वही हूँ। ठीक है, जो है ना वो गुलाम मसीह ज़मान के जी कि जो उन्होंने ये फलां जो है ना वो लफ्ज़ बोले थे। इससे बड़ा और क्या हो सकता है जी कि जो आप जो है ना वो कहें जी फलां किताब चलता फिरता सबूत मौजूद है। तो वो उनसे उससे भी कहें जी कि खिलाफत की आपको बड़ी मोहब्बत है ना, जरा अब्दुल गफ्फार से पूछो कि अगली पेशगोई उसने क्या की हुई है। तो वो भी तो इनके खानदान की थी, और टूबा बेगम भी मिर्जा हैं और इनके खानदान की हैं। तो यूं लग रहा है कि ये वाहिद पेशन गोई है मिर्जा साहब की जो मिनोन पूरी हो रही है। तो ये तो बताते नहीं है कि तूबा साहिबा को क्यों तलाक हुई थी, क्यों नहीं हुई, लेकिन मोहम्मदी बेगम के बारे में तो बड़ी इश्तहारबाजी हुई थी। तो मेरा ख्याल अच्छा जी, जम्मा एक साहब बाबर भट्ट साहब, एक बड़े अफसोस की बात यह है कि ये खाली निदा के साथ ही नहीं, इस फैमिली के साथ सलूक ही ऐसा किया गया, इसकी माँ के साथ भी यही सलूक किया गया। और शायद आप लोग जानते हैं कि अब्दुल करीम शेख साहब ने फौजिया फैजी का इंटरव्यू भी किया था, और उसने भी ये निदा की वालदा है, और उसने भी फिर बड़े हकायक खोले थे उस वक्त, मगर चूंकि उस वक्त लाइव स्ट्रीम नहीं थी, कोई ऐसे जैसे हम आज कर रहे हैं टॉक, ऐसे बात नहीं हो रही थी। उस वक्त यूट्यूब का दौर था, यूट्यूब के जरिए वीडियो चढ़ जाती थी। तो ये फैमिली के साथ ही इन्होंने ऐसा किया है। वालदा भी फिर आपको पता है, इसकी मिर्जा लुकमान की बीवी जो थी फौजिया फैजी, वो फिर डाइवोर्स लेके वो भी अमेरिका बैठी हुई है। और आगे से फिर इन्होंने सोचा कि हम वो माँ, तो जाहिर बात है माँ ने वो बातें अंदरूनी नहीं की वीडियो के अंदर ना, कि क्या क्या जुल्म कर रहे हैं। इशारे उसने बहुत सारे किए कि ये औरतों को कैसे मारते हैं, कैसे टॉर्चर करते हैं, किस तरह उनके बैक पे ये टांगे और जो हाथ में चीज है मारते हैं। और ये जो फौजिया फैजी की खाला थी, इसके बारे में भी इसने बताया, ये जो तूबी का आप जिक्र कर रहे हैं, कि किस तरह उसको ये खुद मालिश किया करती थी, उसे जख्मों पे मरहम लगाया करती थी बेचारी, इतना तशद्दुद किया गया उस पे भी। ये तो बेचारियां रॉयल फैमिली वाली कुछ बोलती नहीं, ये तो शुक्र है अल्लाह का कि ये ऑडियो आ गई, वरना जुबानी कलामी जिस तरह फौजिया फैजी ने बातें की थी, और कादियानियत ने ये कह के झुटला दिया नहीं ये तो औरत झूठी है, ये है वो है। अब तो उन्होंने अपने इस, क्या उसने क्या कहा था किसी ने कि ये खुसरे की आवाज है। हाँ जी, 3-4 दिन तो हाँ, यही कहते रहे, सब बकवास यही है। कहते रहे। अब तो इन्होंने फिर अपने उस खुसरे की आवाज सुन के पहचान लिया, नहीं भी नहीं, जो भी होवे सुन्नत तो ऊपर से चलती आ रही है मिर्जा कादियानी की, तो ये हमारे उसकी उसी की आवाज है। फिर इनके पास चारा कोई नहीं था। तो बहरहाल हम आगे चलते हैं। हमारे साथ दो साथी हैं, काफी देर से नीचे बैठे हुए थे, नईम अमान साहब भी और अब्दुल्ला साहब भी। तो इनसे भी हम इंशाल्लाह राय लेंगे, मगर थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें ताकि प्रोग्राम फिर हम इख्तिताम की तरफ भी जा सके। 2 घंटे हो गए हैं। तो एडमन साहब आगे चलाइए जी। मैंने यही आपको कहा है कि मैं यहाँ पे आपके साथ आर्गुमेंट करी नहीं है। आपने मुझसे मेरा मौक़िफ़ पूछा, सवाल पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। ठीक है, बात होगी क्लियर। आप नहीं क्लियर हुई सर जी, आप यहाँ और आपको अगर मैं कहूँ कि उर्दू से पढ़ो तो आपको वो भी पढ़ने नहीं आएगी, उजा की अरबी। तो ये अच्छा जी, शो ही की है मुंडे ने बड़ी बड़ी, कहता आपको सामने उर्दू दिखा के पढ़ाई जाए, नहीं पढ़ी जाएगी तो अपने खलीफा ने देख लिया, पुत्र सामने अरबी रख के कुरान रख के तो पढ़िया नहीं जाता यार। ना वाहियातियां करया करो, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਜ ਮਤਲਬ ਪਲਟ ਕੇ ਲੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। बट साहब प्लीज रोशनी फरमाओ जरा।
इमरान भाई मसला ये है कि अरबी क्या, खलीफा को उर्दू भी नहीं पढ़ना आती। ये जो लिख के रटाया जाता है, यकीन करें अगर कभी पंखे की हवा से वो पर्चा उड़ गया तो इनकी खिलाफत मुंह के बल जा गिरेगी। खलीफा कह रहा हो वो पेपर लैके मैं को नहीं जाता खुतबा देना। जी जी, एक मिनट में नहीं याद आ गया, पंखे की हवा। इमरान जाट साहब जी शम्स, ये बाबर भट्ट साहब हमें भी अपनी बातों में हमें भी छेड़ते जाते हैं साथ साथ। ये वो पंखे की हवा है वो जो नहीं कर सकते हैं। जी सर, कोई गल नहीं, प्रैक्टिस मैच होना चाहिए, वार्म अप। अच्छा प्रैक्टिस में ये वो पंखे की हवा का जिक्र कर रहे हैं। जब मिर्जा साहब धोती पहन के सोते थे तो वो एक जवान लड़की पंखा चलती थी और वो फिर हवा से वो तहमत का पता नहीं चलता था कहाँ गई, और फिर वो कहती थी कि मैं 3 महीने से ये खिदमत कर रही हूँ और मुझे कभी भी थकावट महसूस नहीं हुई और मुझे एक राहत महसूस होती है। किस वजह से? कि उसको कुछ नजर ही नहीं आता था। वो कहती थी ठीक है साढ़े के रहिए पक्का चली जाओ। तो बाबर भट्ट साहब इचकरे लगाते हैं कि जी वो पंखे की हवा से उड़ जाए। वैसे कह दो जी वो अगर उड़ जाए किधर अगे पीछे हो जाए ए छेड़ देने फिर सानू बोलना पै जाता है। वो ये कहती थी वो ये कहती थी कि अगर पंखे की हवा से उनका तहमत आगे पीछे हो जाता था तो हैदराबाद ही बन जाता था सारा, ये भी कहती थी। अच्छा बाबर भट्ट साहब आगे बात कीजिए। गल किधर और निकल जाएगी फिर कि गल करो। मैं तो सोच रहा हजरत साहब दी खारिश वाली लत्तां सी, तुहानू पता है वो लिखिया साहब हजरत साहब खुरक पई सी हजरत साहब नू। ते मैं सोच रहा जो हजरत साहब तहमत पा के सुते होंदे ने, पखी चल रही है, तहमत सज्जे खब्बे होगी ते विचों लत्तां ते इंज निकली नजर आंदियां होणगियां ना, जिवें देख थल्ले सड़ियां लकड़ां नहीं होंदियां, सड़े चो होंदे ने जिवें, है कोई ये क्रैक किस्म दा मंजर होएगा। अच्छा मैं आपको इमरान जाट साहब यहाँ एक बात बताता चलो। ये इसने जो शोखी दिखाई है ना, जिसको फौरी आपने पकड़ लिया और आपने बात कर दी, मैं इस बंदे को जानता हूं। ये जो टॉपर हिलियन है इसको नहीं पता इन्हें शोखी विखा छड़ी। अगर इसका दिल करता है तो ये किसी दिन हमसे तय कर ले, एक इसके सामने पेपर पेश किया जाएगा, हम पेश करेंगे इंग्लिश में, ये पढ़ के सुना दे पूरा। ये पेपर पेश करे टॉपर हिलियन साहब पढ़ के सुनाएंगे। ये कुरान मजीद का कोई भी सफा सामने पेश करें, कोई पूरा सफा पेश कर दे कि जी टॉपर हिलियन साहब इसको पढ़ के सुनाएं, वो किरात के साथ इसको सुना देंगे। ये पेश करेगा, इससे पढ़ा नहीं जाना। और ये क्या कह रहा है उसको कि उर्दू तो दूर की बात हो, जो अरबी भी नहीं पढ़नी आएगी। अरबी तो दूर की बात है, उर्दू भी नहीं पढ़नी आएगी। नहीं हो सकता है बेचारा ना पढ़ सकता है, कोई ऐसी गल नहीं। घर के मामलात बचपन के ऐसे होंगे ने, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ साया सिर तो उठ जाए तो बंदा तालीम तो महरूम रह जाता है। दर दर की ठोकरों में पला हो, कोई वड्डी गल नहीं बेचारे ने स्कूल का मुंह वेख्या होना, किहड़ी गल है। ऐसा ताना ना करया करो, ठीक है। अच्छा चलो नहीं देखो शोखी करेगा तो असी हम इस बंदे को जानते हो। मैं तुहानू दे गलबात भी पता चलता है लहजे तो कि मतलब वो जाहिल आदमी है। देखो नहीं उन्होंने पढ़ना आंदा, ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਨਫੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੇ ਬਿਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਟੂਰੋ ਸਰ प्लीज। अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया इमरान जाट साहब। हमारे साथ इस वक्त अब्दुल्ला साहब मौजूद है, जरा इनकी भी राय ले लें। काफी देर से माशाल्लाह आए हुए हैं और हमारी गुफ्तो शनीद सुन रहे हैं। जी अब्दुल्ला भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शम्स भाई, कैसी तबीयत आपकी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। शम्स भाई और तमाम लोगों को भी सलाम, स्पेशली बाबर भट्ट साहब को। असल में आपसे सवाल आप लोगों से सवाल ये है, निशाना तो कादियानी ही है, लेकिन सवाल आप लोगों से है कि ये जो 4 गवाह पे जो इतना इनका जोर है कि 4 गवाह चाहिए हैं रेप विक्टिम को प्रोवाइड करने हैं, तो इस चीज से जो 4 गवाह मांग रहे हैं, इस चीज से इनकी कम्युनिटी में रेप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हर औरत को अपने साथ 4 मर्द या 4 भाई ले घूमने पड़ेंगे। अगर नहीं लेके घूमे तो फिर औरत कैसे प्रूफ देगी?
تو इनके जो अड्डे हैं वहां पे रेप बढ़ जाएंगे, जो ये 4 गवाह मांग रहे हैं, कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? जी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत शुक्रिया जी मैं इसका जवाब जवाब ये है कि पहली तो बात ये है कि ये एक ऐसी कौम है जिन्होंने अपनी नबी की बेटी को नहीं बख्शा, तो वो 4 गवाह जो होंगे मुहाफिज, वो उस लड़की को बख्श देंगे जिसके लिए गवाह होंगे। अल्लाह माफ फरमाए। ये तो मैं ये कहा करता हूं कि शुक्र करें, अल्लाह का शुक्र है कि इनको कहीं पे सरदारी नहीं मिली, कहीं पे हुकूमत नहीं मिली, वरना एक गली में भी इनका अख्तियार चलता तो वहां की लड़कियों को लोहे की निकरें सिलवानी पड़ती थी, वो अंडरवेयर नहीं पहन सकती थी। इसलिए ये अल्लाह माफ करे, वो हमारे मुश्ताक साहब हैं, लोहरी जमात में चले गए हैं वो, तो वो कहते हैं कि अब खिलाफत एक ही तरीके से चलेगी कि सारे ओहदेदारों के और खलीफा के अज़ाए तनासुल काट दिए जाएं, फिर ये खिलाफत चलेगी, वैसे नहीं चलेगी। बाबर भट्ट साहब लैग काट दिए जाए गल है कोई करने वाली, कटन वाली केड़ी गल है? हजरत साहब दे ते इनमें ट्रेडिशन है, सुन्नत है हजरत साहब दी, वो कटन कुटन वाला काम केड़ा भाई? या ते हथियार मोलक होवे ना ते बंदा कोई तोड़ सोचे। हजरत साहब को तो वेपन ही नहीं सी। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम का इख्तिताम जो ना काफी लंबा चले जाना है। अच्छा चले मैं भी मुख्तसर इसका जवाब दे देता हूं। देखिए, शफीक मिर्जा साहब जो थे ये भी साबिक कादियानी थे और इन्होंने एक दो किताबें लिखी और उसके अंदर जो शहर सदूम है उसको बड़ा मुकाम हासिल है। अच्छा, जब मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अपने दौर के अंदर मौजूद था, उस पर इल्जामात लगे, ठीक है। शफीक मिर्जा ने उन लोगों को इकट्ठा किया, अपने पास बुलाया, उनसे इस बात पे कस्में ली। फिर शफीक मिर्जा ने उनसे ये कहा कि क्या आप इस बात की शहादत देंगे किसी भी फोरम पर? उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल देंगे। उसने मिर्जा, क्योंकि वो फिर बाद में नवाए वक्त में अखबार में भी काम करने लगे, उन्होंने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद को बार बार ललकारा। किताब छपने के बाद बार बार इसे कहा, कसरे खिलाफत के अंदर वो किताब भेजी गई कि भाई तो इस बातों का जवाब दो। ये खामोशी इख्तियार कर गया, ठीक है। इसने क्यों नहीं वहां कहा कि तुम्हारे पास क्या 4 गवाह है? इसे पता था 4 नहीं 44 गवाह निकल आएंगे मेरे खिलाफ। ये खामोश रहा। फिर इसके बाद वो बार बार इसको कहता रहा कि अगर तुम समझते हो कि मैं गलत बयानी कर रहा हूं, मैं तुम पे इल्जाम लगा रहा हूं, तो वो अदालत का दरवाजा है, जाके खटखटाओ और मुझ पर हत्या की इज्जत का दावा कर दो। तुम एक दफा कुछ करो तो सही, देखो फिर मैं उन लोगों को कैसे तुम्हारे पास लेके आता हूं। तो बशीरुद्दीन महमूद अपनी खुद में घुसा रहा, बिल्कुल बाहर नहीं निकला। तो मेरे भाई बात यह है कि ये मैंने पहले आपसे कहा है कि ये तो किस्मत अच्छी है कि ये ऑडियो लीक हो गई है। मिर्जा मसरूर को पता चल जाता है ना कि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं यकीन से कहता हूं इसने बस सिर्फ हेलो हाय करना था, शायद ये कॉल भी ना सुनता। और ये बात पहले भी चल रही थी, ये नहीं कि ये सिर्फ इतनी सी ऑडियो हुई है, बात इसका मतलब पहले चलती आ रही थी। और उस औरत ने महसूस किया कि भाई खलीफा वक्त होके ऐसी पुठी पुठी बातें कर रहा है, तो क्यों ना इसको ऑन द रिकॉर्ड लिया जाए। ये किस्सा तो पहले भी चल रहा था। तो लिहाजा ये 4 गवाहों वाला जो मामला है, ये कसरे खिलाफत के अंदर तो बहुत सारे गवाह मौजूद हैं, मगर किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये निदा है जो इसने निदा लगाई है, अल्लाह ने इसको हिम्मत दी है। और फिर सबसे बड़ी बात ये, बहुत सारी खवातीन के साथ, मैं सारी नहीं कहता, सारी पे मुझे कहने का हक नहीं है, बहुत सारी खवातीन के साथ कसरे खिलाफत नहीं, कसरे खिलाफत के बाहर भी यही काम हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि अगर 100% वहां की आबादी है, 75% कसरे खिलाफत के अंदर जो है वो तो 100% ये काम हो रहे हैं। अब 70% जो बाहर आबादी है उसमें भी मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 35 से 40% ये काम हो रहे हैं। और आपको भी पता है पूरी दुनिया में ये काम लुक छुप के ही होते हैं। अब ये थोड़ी होगा कि खलीफा के घर को जाएगा और उसके सामने
اس کی بیٹی کو لے کے وہ پلنگ پہ چلا جائے گا، نہیں، وہ لک چھپ کے لیے کام کرے گا. تو ایسا یہ پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پہ ہو سکتا ہے اور ممالک میں بھی اور جگہ پہ بھی ایسے لوگ موجود ہوں، مگر جب کوئی اور بندہ ایسا کام کرتا ہے تو اس پہ لوگ آوازیں نہیں کستے. اس چھوٹے سے معاشرے میں اس کے محلے میں آوازیں کسی جاتی ہیں. جب اتنا بڑا سکینڈل بنتا ہے کہ ایک خلافت کا دعوے دار بندہ، ایک جماعت کا ہیڈ، وہ جب ایسا کہے کہ تم اس بات کو دبا دو، نہ کرو، اگر تم بہت شور ڈالو گی تو کیا ہوگا، 4 دن شور پڑے گا، پھر لوگ خاموش ہو جائیں گے. تو اس کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی. چلیے بہرحال مجھے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جانا ہے. تو ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں جی، ان سے بھی ہم وقتاً فوقتاً تبصرہ لیں گے، مگر ایک ساتھی جو بہت زیادہ عمران جٹ صاحب سے اور بابر بٹ سے، یعنی جٹ اینڈ بٹ دونوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے میں صرف ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ وہ بزرگ ہیں اور وہ ہو سکتا ہے انہوں نے سونا ہو، ان کا پیغام لیتے ہیں پھر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. محمد صدیق صاحب انڈیا سے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس بھائی اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جٹ صاحب اور میرے ہر دل عزیز بابر بٹ صاحب، آپ لوگوں کو صرف سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. اللہ پاک یہ اکابر اور اسلاف ختم نبوت کے اللہ ان کو تادیر زندگی حیات دے اور ہمارے سروں پر سایہ بن کر ان کا منہ کالا کرتے رہے. بس میں انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونا چاہتا تھا. بس سلام کرنے کے لیے آیا ہوں. شمس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ. آپ انڈیا سے آتے ہیں اور بڑے پیار سے، انڈیا یو پی سے شاید آتے ہیں، اتر پردیش سے، تو نہیں، بڑے ہی پیار کرنے والے ہیں یہ ہمارے صدیق صاحب. اللہ تعالیٰ میں کرناٹک سے ہوں. کرناٹک سے ہیں جی. عمران جٹ صاحب آپ سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے اظہار بھی کیا. آپ ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ ہمارے بزرگوار بالکل جناب انڈیا سے آتے ہیں، ہم سے نہیں، سب ختم نبوت کے مجاہدین سے یہ بہت محبت کرتے ہیں. میرے ساتھ ذرا تھوڑی سی خصوصی شفقت فرماتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی مطلب یہ لسنر بھی ہیں اور بڑا ان کا اپنا جذبہ بہت ماشاءاللہ بڑا خوب ہے. ہاں آپ سن رہے ہیں جی الیاس صاحب میری بات؟ سن رہا ہوں. آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کی جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے. اچھا دوستو، ایسا ہے کہ مجھے پتا تھا صدیق صاحب صرف سلام کرنے کے لیے ہی آئے ہیں، اور چونکہ سردی زیادہ ہے اس وقت ہمارے پاکستان میں 11:30 بجے ہیں، تو ان کے ہاں 12 بج گئے ہوں گے. یہ آدھا گھنٹہ ہم سے آگے ہیں، تو میں نے کہا ان کو فوری طور پہ لے لیا جائے کال پہ تاکہ یہ ہمارے احباب سے اسلام دعا کر لیں. صدیق صاحب بہت شکریہ. اگر آپ بیٹھنا چاہیں اسٹوڈیو میں بیٹھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. اگر یوٹیوب پہ سننا چاہتے ہیں تب بھی مختصر میں پھر ایک دفعہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں تمام صاحب علم سے جو ہماری اس ٹیم میں ہمارے دوست ہیں، معزز مہمان ہیں، کہ تبصرے کو مختصر کر لیں. تو میرا خیال ہے شاید 3 گھنٹے میں بات ختم ہو جائے، ورنہ چوتھا گھنٹہ بھی ہمیں ساتھ ملانا پڑے گا اور پھر شو ڈل جاتا ہے جی. لمبی لمبی اسٹریمیں ہوتی ہیں. نئی ممان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جی. نئی ممان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس بھائی شکریہ. وعلیکم السلام. شمس بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. آپ سنائیں صحت مزاج کیسے مزاج ہیں؟ آج تو مائک بند کیا ہو، کوئی نہیں، کھاتے پیتے نظر نہیں آ رہے. او کیمرہ بند کیا ہو، کھاتے پیتے نظر نہیں آ رہے. وہ میں سن رہا تھا یوٹیوب پر. انڈا بھی کھایا تھا آپ نے، ابلا ہوا. جی جی وہ بھی. ہاں تو یہ پروگرام میں نے اس کا سرسری سے دیکھا ہے جری اللہ کا. جن لوگوں نے مرزا بشیر کو پڑھا نا، انوار العلوم کو یا خطبات محمود کو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرزا بشیر پر الزام لگا تھا سکینہ کا، اور موبائل کا چیلنج بھی دیا گیا تھا. تو لوگوں نے شور کیا تھا وہاں پر بھی کہ یہ کیوں نہیں مبالغہ کرتا. مرزا بشیر ان کو کیا جواب دیا تھا؟ وہ کہتا ہے اناف میں موبائل اس پر کدھر ہوتا ہے، اپنی دلیلیں دیکھیں. انہوں نے اس کو کہا تھا کہ تم اپنی دلیل دیکھو، مرزا صاحب کی دلیل موجود ہے کہ مبالغہ ہو سکتا ہے، تم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کو چھوڑو، تم اپنی شریعت پہ چلو. تو مرزائیوں کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں کہ فلاں نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اس کو چھوڑیں، یہ دیکھیں کہ نہیں اپنی شریعت میں کیا ہے، کہ 4 گواہ ضرورت ہوتے ہیں یا نہیں.
ان کا سارا زور 4 گواہ پر. یہ میرے پاس مرزا طاہر کی ایک ویڈیو پڑی ہے کہیں تو میں اس کی آڈیو آپ کو سنا دیتا ہوں, 3 منٹ کی ویڈیو ہے. یہی سوال کیا گیا مرزا طاہر سے. تو واٹس ایپ میں ویڈیو آپ کو سینڈ کر دوں گا, پروگرام میں بے شک بعد میں پلے کر دیں یا علیحدہ پلے کر دیں, تو میں اس کو آڈیو آپ کو سناتا ہوں. میں بعض مجسٹریٹوں نے اس بات کی آڑ لے کر کہ 4 گواہ زنا کے لیے شرط ہیں, ایسی خواتین کو بھی جو زنا بالجبر کا شکار ہوئی اور جن کے پاس گواہ سوائے اپنی اس کیفیت کے اور کوئی بھی نہیں تھا, ان کو قید بند میں ڈالا. اور اچھا جی, تو کہ چونکہ ان کے پاس گواہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا اسلام کا ہوگا کہ جناب اسلام نے صرف زنا کی سزا تو مقرر نہیں کی ہوئی, بغو, بغی اور شرارت اور فساد اور ظلم کی بھی تو ہے. کسی طرح اگر کوئی ظلم ہے تو شرم 4 والی گواہی نہ صحیح, اس کے ظلم کے خلاف تو احتجاج کرنے کا حق ہے عورت. اور ایسی صورت میں پھر وہ جو آپ بتا رہے ہیں نئے قانون نہیں, ہاں ڈی این اے وغیرہ وہ کام آ سکتے ہیں. ایسی عورت کا مقدمہ درج کرنا بجائے اس کے کہ اس کو یہ دھمکی دی جائے کہ تم 4 گواہ نہیں لا رہے اس لیے تمہیں کوڑے پڑیں گے, یہ بالکل جائز ہے مقدمہ درج کرنا. بلکہ 4 گواہوں کا جہاں تک تعلق ہے, ایک لوگ اس فرق کو نہیں دیکھتے, وہ اس لیے ہے کہ عورتوں کی عصمت کی حفاظت کی جائے. قرآن کریم نے اس حرض سے وہ بڑا بیان فرما کر کہا ہے تم لوگوں کو اجازت نہیں کہ تم معصوم عورتوں کو زبانیں کھولو. وہ صرف مرد کا سوال نہیں, عورت کی عصمت کا زیادہ سوال ہے. اور بہت عظیم یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اقدام ہے سوسائٹی میں عورت کی عزت اور احترام کو قائم کرنے کا. جس عورت کی عصمت پر حملہ ہو رہا ہو اس کو اسی کی آڑ لے کر اس کو بے عزت رہنے دیا جائے, یہ کون سا انصاف ہے؟ قرآن کریم تو عصمت کی حفاظت کی خاطر یہ کر رہا ہے. بس زبانیں بند کر رہے ہیں ان کی جو تھرڈ پارٹیز ہیں, جو باتیں کرتے ہیں اور آپ باہر ہیں, ان کے لیے سزا کا حکم ہے. بہتان لگانے والے, ہاں بہتان لگانے والے معصوم عورتوں پر. تو جو عورت خود اپنے اوپر بہتان لگا رہی ہے وہ کوئی وجہ ہے تو بیان کر رہی ہے, اس لیے اس کو اس شک کے تابع شمار کیا ہی نہیں جا سکتا. اگر وہ ثابت کر دے تو جس طرح بھی ثابت کرے اس کو سننا پڑے گا, کیونکہ اپنے خلاف کوئی ایسا گندا الزام نہیں لگا سکتا. اگر وہ ثابت نہ کر سکی اور ثابت ہوا کہ وہ خود سازش کر رہی تھی کسی کے خلاف, تو اس کو پھر 80 کوڑے پڑیں گے. جی شمس بھائی سنا ہے آپ نے, یہ مرزا طاہر کی ایک ویڈیو سے سوال کیا ہے, اس کا جواب اس نے دیا. 2 باتیں اس نے کی ہیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات اس نے یہ کیا کہ قرآن کریم میں جو 4 گواہوں کی شرط بیان ہوئی ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے جو کسی تھرڈ پارٹی پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے زنا کیا, وہ بندہ 4 گواہ پیش کرتا ہے, ریپ والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک, یہ شرط اس کے لیے. کی بات سنے کہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہتا ہے کہ بابر بھٹ صاحب ایک منٹ ان کو بات پہلے کرنے دیں, پھر آپ ان کی بات کیجیے گا, معذرت چاہتا ہوں. اچھا, اس کے بعد مرزا طاہر نے یہ کلیئر کٹ کہا ہے کہ ریپ والے وکٹم کو جو ہے نا وہ ضرورت ہی نہیں ہے گواہوں کی, وہ کسی بھی صورت میں ثابت کر سکتی ہے, کسی بھی صورت میں کوئی بھی اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے, زمانے کے دستور کے مطابق, عدالت کے قوانین کے مطابق ہو سکتا ہے. ایک یہ شرط ہی نہیں ہے. یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 4 گواہ نہ ہو, تو یہ وہ کہتا ہے کہ تحفظ ہی عورت کے لیے ہے کہ جو بندہ عورت پر الزام لگاتا ہے اس کو الزام لانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اس نے 4 گواہ پیش کرنے. یہ قرآن کا مفہوم اس نے بیان کیا ہے. قرآن نے یہ بات سامنے رکھ کر یہ بات کی, یہ نہیں کہ ریپ والی عورت 4 گواہ پیش کرے. اور پھر اس کا خود اپنا اقرار ہے, وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں 4 گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, باقی ثبوت بھی دیکھے جاتے ہیں. ہاں جی, میرے خیال میں جری اللہ کو اتنی دوائی کافی ہے, اتنی دوائی میرے خیال میں اس کو کافی ہو جانی چاہیے. وہ کہہ رہا ہے آخر میں کہ کوئی بھی عورت اپنے خلاف خود گندا الزام نہیں لگا سکتی. اگر وہ کہہ دے تو پھر گواہوں کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے.
ये मिर्जा ताहिर के अल्फाज है। बिल्कुल ताहिर के अल्फाज हैं। जिस भाई को ये वीडियो चाहिए मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं उसको सेंड कर देता हूँ। आप कहीं हमें थोड़ी देर पहले ये वीडियो सेंड करते तो हम लाइव चला के दिखा देते, मगर चलें ये लोग अभी आवाज सेंड बड़ी कर देता हूँ पहचानते आपको शमस भाई, ये लोग आवाज पहचानते हैं, मगर शमस मुझे भाई डर अभी है सेंड कि कर देता हूँ। कौन सा प्रोग्राम खत्म हो गया? नहीं भाई, वो शमस भाई आपकी बात पे भी यकीन अभी है। सेंड कर देता हूँ, एक मिनट बात तो सुन लेना। देखे पता क्या है, थोड़ा सा बात भी सुन ले। मुझे पता है अभी सेंड भी कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, मगर चूंकि अब आपने सुना दी है मैंने, इसलिए कहा खैर है इसकी। मगर मैं इस बात से नहीं थोड़ा नहीं सा डर वीडियो रहा प्ले था करें आप, सर एक मिनट वीडियो बात तो प्ले सुनने करें दे, फिर बात तबसरा करें आप। नहीं मोहन साहब, जब आपने सुना दी है 3 मिनट, अब बात अगली करने देना, सुन तो ले। मेरे कहने का मकसद है ऑडियो बात सुन ले। मैं क्यों कह रहा हूं ऑडियो की, कि हो सकता है जैसे ये निदा की ऑडियो आई तो बाबर भट्ट साहब ने कहा कि 4 दिन क्योंकि ये कहते रहे कि ये किसी खुसरे की आवाज है, मुझे ये शक था कि ये ऑडियो सुनने के बाद फिर ना कहें कि यार ये भी किसी ढोंगी की आवाज है, किसी खुसरे की आवाज है। तो इसलिए मैंने कहा जब सामने चल जाती तो वो चेहरा देख ले तो उनको अंदाजा हो जाना था, इसलिए ये बात कह रहा था मैं। जी नहीं मोहन साहब, चले वो अगर आप ये तमाशा देखना चाहते हैं, वो अगर इसको डोंगी की आवाज कहना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्जी की बात है ना। तो मेरे पास तो वीडियो मौजूद है, एक नहीं कहीं मौजूद है, इस पर 3-4 वीडियो मेरे पास इसकी मौजूद है। इंशाल्लाह इसको मैं भी इसको डाउनलोड करके इसको आखिर में हम चला देंगे, ताकि ये जो ऑडियो सुनी है इस पे मिर्जा मसरूर पे अपना मिर्जा ताहिर पे इल्जाम लगाए। मगर मुझे अफसोस मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान था कि देखें मिर्जा ये जो ताहिर है इसको पूरी जमात के अंदर सारे मरजई मानते हैं, सारे मरजई इसकी बहुत इज्जत करते हैं, बाकियों की नहीं इतनी करते, बशीरुद्दीन की और किसी की इसकी सबसे ज्यादा करते हैं। और देखे इसी की पोती के भतीजी के साथ इन्होंने सलूक क्या किया है। नहीं मोहन साहब अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा एक और बात मैं कर रहा था कि ये 4 गांव वाला जो उन्होंने शोर डाला उसमें एक और बड़ा पॉइंट है। मिर्जा मसरूर उस लड़की को कह रहा था कि तुम गई थी उसके आमर के पास लाना के, वो इनकारी है इस बात से। अब मिर्जा मसरूर को चाहिए कि वो इल्जाम लगा रहा है 4 गवाह पेश करे। क्या जमातों के साथ 4 गवाह पेश करती है? बहुत अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है। ऑडियो सुने ना आप, वहां 4 गवाह इल्जाम तो उसने लगाया है ना, इल्जाम लगाने वाले पर 4 गवाह लाजम है। और यही कुरान की शर्त है कि थर्ड मैन है, एक फरीक है निदा, दूसरा फरीक है आमर, थर्ड फरीक है मिर्जा मसरूर। वो इल्जाम लगा रहा है कि तुम आमर के साथ गई थी, तुमने ये पहले काम भी किया था। उसने इनकार कर दिया कि मैंने नहीं किया। अब इसका काम है 4 गवाह पेश करके उसको साबित करना। ये किधर से 4 गवाह पेश करेगा? यहां इनकी शर्त सो जाती है। बहुत अच्छा है। इमरान जाट साहब आप कुछ कहेंगे इस पर? आपने मिर्जा ताहिर की वीडियो ऑडियो भी सुनी। इमरान जाट साहब मौजूद है हमारे साथ? चलिए अच्छा जी, बाबर भट्ट साहब आप कुछ कहेंगे या आगे चलें? जी जी, मैंने यही कहना था कि मिर्जा ताहिर का जो आखिरी लाइन है उस पर गौर करें कि वो कह रहा है कि जो औरत, कोई भी औरत हो, वो अपने खिलाफ इतना गंदा इल्जाम नहीं लगाती, क्योंकि उसको पता है कि मेरी इज्जत जो है वो तार तार हो जाएगी। तो वो कोई बहुत ही मजबूर औरत होती है जो सामने आती है, तो उसके बाद फिर उससे 4 गवाह मांगना ये बहुत बड़ी जाती है। ये इनके जो सबसे बड़े गुरु हैं जिनको ये मानते हैं वो कह रहे हैं। तो ये ऑडियो जो वीडियो है ये वाकया सही है बिल्कुल, और ये वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। अच्छा जी, मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ अभी तक कोई कादियानी आया नहीं, मगर ये मैसेज जो आया है ये वही है जिसके बारे में इमरान जाट साहब कहते हैं ऐते मुंडा ही पता नहीं कितने कितने गलियां फिरदा रहता है, मुबारक यूके के नाम से। कहता है गुलाम अपने आका पर हलाल होता है, वो जो करता है हलाल होता है, और हमारा इस दीन इसकी इजाजत देता है। बहुत अच्छा जी, क्या बात है जी। अच्छा जी, चलिए जी आगे चलते हैं जी, आखिरी पॉइंट देखते हैं। मुझे लगता है ये आखिरी पॉइंट है, आगे चलते हैं जी। एडमन साहब आगे चलाइए। सर मैंने तो अपना मौकफ दे दिया है, आप 10 मौकफ और दें। अब एक सवाल छोटा सा मेरा भी ले ले तो
चले आप जाएं काम करें, फिर सवाल फिर आप घर में खुद ही बैठ कर लेके उसके सवाल खुद ही पूछिएगा। मैंने आपको मौका दिया, आपने मौका गंवा दिया है कि आपने। अच्छा इमरान जट साहेब, ओ जट साहब किधर गए हो? अच्छा लगता है इमरान जट साहब भी अंडे उंडे खान चले गए ने। अच्छा जी, आखिर में फिर जो हमारे दोस्त हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने तो अपना मौका वाज़िया बयान कर दिया है, आप मेरे सामने जो भी बात रखते हैं उसको छोड़ें, अब मेरे एक सवाल का जवाब दें। तो जनाब ये मुंडा जो है ये इतना गुस्से में आ गया, इसने कहा जाओ फिर अपने घर जाके सवाल जवाब करो। इसका मतलब जब आपके घर आके ये सवाल जवाब करता है तो आप इसके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। और बढ़ के तो बड़ी मार रहे थे कि खुड में बढ़ जाते हैं, ये हो जाता है, फलान हो जाता है, टींग हो जाता है, ऐसा हो जाता है। बाबर भट्ट साहब आपने भी ये वीडियो कहीं लिंक के जरिए पूरी सुनी है? जी नहीं सुनी मैंने। अच्छा आपने नहीं सुनी। अगर इसको आप सुनते ना तो इसमें यही कह रहा है कि जी हमारे सामने तो कोई टिकता नहीं है, जमात अहमदिया के दलाइल इतने मजबूत है, कोई बंदा बात नहीं कर सकता, सारे मौलवी खुड में बढ़ जाते हैं, ये हो जाता है। इसने इसमें इतना शोखापन दिखाया है ना कि अब मैंने फिर बताया, मैंने कहा इंशाल्लाह आगे चल पता चलेगा कि ये सलूक क्या करते हैं। तो अभी मैं हम आपके सामने दूसरा जो हमारा मुसलमान साथी शेर खान पेश हुआ है उसके साथ इसने क्या सलूक किया वो आप खुद देखिए। जी एडमन साहब जरा इसका अगला हिस्सा लगाइए जहां पे फिर सवाल नंबर 1 आ रहा है। मेरे साथ बशीर खान साहब मौजूद है। जी बशीर खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बशीर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि जो मैंने शर्तें वहां पे लगाई हैं, जो मैंने बात वहां पर किया, वही बात आपकी तरफ है कि जब मैं बात करूंगा आपने बात नहीं करनी, आपने सवाल से नहीं हटना। अगर सवाल से हट के अगर आपने कोई गुफ्तगू की तो आपको मैं सीन से निकाल दूंगा। आपने माइक म्यूट के दौरान अपना माइक अनम्यूट नहीं करना, अनम्यूट करके बात करेंगे तो आपको मैं निकाल दूंगा। ये होगी एक बात। दूसरी बात ये है, अच्छा जी दूसरी बात और बाद में चलते हैं, इससे पहले आइए एक छोटी सी, मुझे याद आ गया कि मिर्जा कादियानी भी इसी किस्म की शराइत पेश किया करता था। और जब मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह कादियान पहुंच गए, जो मिर्जा साहब का दावा था नहीं पहुंचेंगे, मगर वो पहुंच गए। चूंकि रमजान बीच में हायल हो गया, वो ना जा सके, रमजान खत्म हुआ तो वो फौरी पहुंच गए। और फिर जो हाल हुआ वहां पे वो थोड़ा सा मुलाहिजा फरमाइए। आप लोग जरा इजाज़ अहमदी का ये टाइटल पेज चेक कीजिए जिसमें मिर्जा कादियानी साहब ने लिखा था कि अनकरीब ये निशान जाहिर हों। 1 महीना 25 दिन किताब को पब्लिश हुए अभी गुजरे नहीं कि इतला क्या मिल गई असर के वक्त मिर्जा कादियानी को कि मैंने जिसको इतना बुरा भला कहा, जिसके लिए मैंने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसको मैंने आने का चैलेंज दिया और साथ कहा था कि वो हरगिज नहीं आए गए, वो तो कादियान पहुंच भी गए। परेशानी में अब क्या शुरू कर दिया उन्होंने? हुज्जतें शुरू कर दी। अब एतराजात शुरू होने लगे हैं, जरा गौर कीजिएगा। हम तैयार हैं ताकि लोगों को धोखा लगे कि हम तो एग्रीड हैं। जी तैयार किस लिए? लेकिन कि वो यानी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हफ्ता अशरा आराम से सब बातें सुने। आपने उनको बात सुनने के लिए बुलाया था। आपने बुलाया था कि मेरे पास आओ, और जो मेरी पेशन गोइयां हैं जिनमें से नज़रुल मसीह की 150 पेशन गोइयों का जिक्र भी था, आओ और आके एक एक की मुझसे पड़ताल करो। अगर इसका मंशा मुबाहिसे का हो तो ये उसकी गलती है, क्योंकि अब मुद्दत हुई कि हम मुबाहिसात को बंद कर चुके हैं। 24 फरवरी 1899 को मुबाहिसात से तौबा कर दी, मगर नवंबर 1902 में वो सनाउल्लाह साहब अमृतसरी को फिर क्यों कह रहे हैं कि आइए जनाब पेशन गोइयों की पड़ताल कीजिए? क्या भूल चुके थे कि मैं तो मुबाहिसात से तौबा कर चुका हूँ? माशाल्लाह से जब सनाउल्लाह अमृतसरी साहब आ जाते हैं तो मिर्जा साहब की याददाश्त एकदम से वापस आ जाती है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब के आने का सुनकर उनको छठी का दूध याद आ गया। शर्त ये होगी कि आप जबानी बोलने के मिजाज ना होंगे। वाह जी वाह, आप आए जी, कादियान जरूर आए, बल्कि मेरा दावा है कि आप हरगिज नहीं आएंगे। अब आ गए, पहुंच गए, इतला मिल गई, रुका आ गया, अब परेशानी बढ़ रही है। पहला एतराज, गुमार के घर में क्यों रुके? दूसरा एतराज, मैं मुबाहिसात हरगिज नहीं करूंगा। तीसरा एतराज, आप आ ही गए बिलफर्ज,
تو پھر زبانی بول نہیں سکیں گے، آپ اسے مباحثہ نہیں کر سکیں گے، صرف آپ مختصر 1 سطر یا 2 سطر تحریر دے دیں گے کہ جی بٹ صاحب۔ جی عمران بھائی دیکھیں، یہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو یہ یقین تھا کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کبھی آئیں گے نہیں قادیان میں، اور جب وہ آ گئے تو پھر شرائط ایسی ہے کہ آپ نے 2 لائنیں لکھنی ہوں گی بس، باقی میں گھنٹہ 2 گھنٹے بولوں میں نہیں بولنا۔ تیسری شرط کیا ہوگی؟ 1 دن میں صرف 1 ہی اعتراض آپ پیش کریں گے، کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے بلکہ چوروں کی طرح آ گئے ہیں۔ ہاں ہاں، اس بندے خدا لکھ لکھ کے کتابوں میں اس پہ الزامات جھاڑ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، ڈرامے دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اور اب اگر بندہ آ گیا ہے تو میرا خیال ہے کوئی نیٹ کا پرابلم ہے، ورنہ بڑا زبردست کام تھا، ابھی تو پکچر باقی ہے۔ معجزہ ہو گیا کوئی مرزا صاحب کا، لگتا تو یہی ہے۔ وہ ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی تو سچی مچی پہنچ گئے نا، سرپرائز۔ اور پیر صاحب آف گولڑا شریف کے ساتھ بھی یہی اس نے کیا، انہوں نے وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ لاہور کبھی آئیں گے نہیں، تو جب آئے تو پھر دوسرے ایکسکیوز بنا لیے۔ اچھا ایڈا بیوقوف ہے، بچے کہندے نے نا تو اپنے ورگا سمجھے، اے اپنے ورگا سمجھ کے چیلنج کر دیندا سی، کسی نے نہیں کہا صاحب یاد ہے یار۔ چلو جی ٹھیک ہے یار عمران بھائی یہ دیکھیں کہ کبھی بھی خلافت علماء اسلام کے سامنے آ کے کھڑی نہیں ہوئی، کبھی بھی، نہ مرزا طاہر، نہ مرزا ناصر، نہ یہ جو، کیوں کہ ہمارے جو علماء ہیں، ابھی ماشاءاللہ ہمارے مولانا صاحب آ گئے ہیں، قاسم صاحب، یہ لوگ عربی کی جو صرف و نحو ہے، جو گرامر ہے، جو ہر چیز ہے وہ جانتے ہیں کہ خلفاء کی حالت آپ نے دیکھی ہوئی ہے۔ تو 74 میں سب سے پہلے جب سامنا ہوا علماء اسلام کا قادیانی خلافت کا، تو پہلے یہ پابندی لگوائی مرزا ناصر نے کہ جو علماء ہیں اسلام کے، یہ میرے ساتھ سوال نہیں کریں گے، یہ پہلی پابندی تھی۔ اگر سوال کرنا ہے تو یہی اب اختیار کرے۔ ان کو یہ تھا کہ یہ تو سوشلسٹ، یہ جو ہے سیکولر آدمی ہے، یا مطلب ہے اس کا تو اتنا وہ نہیں ہوگا علم، لیکن جب کھانے کا وقفہ ہوتا تھا یا چائے کا، تو پھر وہ جو علماء ہیں وہ ان کو سوال بتاتے تھے۔ جی ماشاءاللہ ایسا ہی بات ہے جی۔ جی 22 اسپرٹ صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی، جو آپ وہ ویڈیو چلا رہے ہیں نا، آواز نہیں آ رہی۔ ہاں بالکل، میرا خیال ہے کوئی نیٹ کا شدید پرابلم ہے ان کی طرف سے۔ جی جی چلیں میرا خیال ہے دیکھتے ہیں، اگر آخری ٹرائی کرتے ہیں، اگر آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ نہیں میرا خیال ہے، چلیے نہیں آئے بلکہ چوروں کی طرح آ گئے ہیں۔ میں صرف 1 ہی اعتراض آپ پیش کریں گے، کیونکہ آپ اطلاع دے کر نہیں آئے بلکہ چوروں کی طرح آ گئے ہیں۔ توبہ ہے۔ اس بندے خدا لکھ لکھ کے کتابوں میں اس پہ الزامات جھاڑ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، ڈرامے دے رہے تھے، دھمکیاں دے رہے تھے، اور اب اگر بندہ آ گیا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ چوروں کی طرح آ گئے، آپ نے اطلاع نہیں دی۔ انہوں نے اب کسی طرح اس مباحثے کو، اس ڈسکشن کو، اس میٹنگ سیشن کو روکنا تھا، اور روکنے کا طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے اعتراض آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے ہرگز گفتگو شروع نہیں کرنی، بالکل منہ بند رکھنا ہے، جیسے کہ سمن مکمن، گونگے اور بہرے۔ مولانا صاحب کو صرف 2 سطروں تک لکھنے کی اجازت دے رہے، اور ان 2 سطروں کے جواب میں مرزا قادیانی صاحب خود 1 گھنٹے تک ایک جواب سنائیں گے، اور اس دوران مولانا صاحب سمن اور بکمن بھی ہوں گے۔
गूंगे होने के साथ साथ बहरे भी होंगे, यानी कि मौलाना साहब आपने सुनना भी नहीं है, क्योंकि आप सुनेंगे तो आप मजीद एतराज करेंगे ना। हम तैयार हैं कि वो हफ्ता अशरा आराम से सब बातें सुने, बोले नहीं सिर्फ सुने। अच्छा यहाँ सुनने को कह दिया, आगे कह दिया सुमुन बुकमुन। अच्छा यहाँ पर कह रहे हैं कि एक हफ्ता या 10 दिन तक भी सनाउल्लाह साहब आके मुझे मुसलसल सुनते रहे। 11 जनवरी को मैं आपको जवाब लिख के भेज रहा हूँ। जाहिर है कि 11 वाला दिन तकरीबन गुजर जाएगा शराइत तय करते करते, 12 को आप आएंगे और 12, 13, 14 3 दिन के बाद मैं वैसे ही खिसक जाऊंगा, तो वो हफ्ता अशरा कहाँ चला गया? तो आगे फिर वही बात बार बार रिपीटेडली कि सोच कर देख लो कि बेहतर होगा कि आप बजरिया तहरीर जो सतर 2 सतर से ज्यादा ना हो, एक घंटे के बाद अपना शुबा पेश करते जाए, मैं दूर करता चला जाऊंगा। बिल आखिर इस गर्ज के लिए अब आप अगर शराफत और ईमान रखते हैं तो कादियान से बगैर तस्फिया के खाली ना जावे। वो कहते थे कि वो हरगिज कादियान में नहीं आवे। अब जब वो कादियान में आ गए हैं तो मुबाहिसा हरगिज नहीं होगा। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब एक बहादुर शेर की तरह, एक जरी बहादुर शेर की तरह पहुंच चुके, तो फिर गुफ्तगू का चैलेंज करते हैं, और जब चैलेंज कोई कबूल कर ले तो फिर क्या करते हैं जी, फिर इसकी किरदार कुशी शुरू कर देते, शराइत का अंबार लगाना शुरू कर देते कि किसी ना किसी तरह, किसी ना किसी शर्त पे आकर ये मुबाहिसा तय होने से रह जाएगा। राह फरार इख्तियार करते हैं क्योंकि मिर्जा साहब के पास यही आखिरी हल। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जी, वैसे सच बताइएगा कि जो बात आपने सुनी और मिर्जा कादियानी के बारे में जो उन्होंने शराइत रखी, सुमुन बुकमुन ये वो आगे पीछे, कि मैं आप सिर्फ 1 या 2 सतर लिखेंगे उसके बाद मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा, क्या ये सारा कुछ आपको इस शोखे मुंडे के स्ट्रीम में नजर नहीं आया? जी इमरान भाई, क्या क्या कहते हैं? नजर आ रहा है? इमरान भाई से लेते हैं। अच्छा जी, मैं तो सर देखें, मसला तो ये है ना, एक जो शराइत रखी ना हजरत साहब ने, 1 मिनट मैं बोलूंगा फिर आपने 2 घंटा बोलना है। नहीं सॉरी, आप 2 लफ्ज लिखेंगे, 2 जुमले, उसके बाद 1 हाँ जी, 2 सतर, 2 सतर होगी, 2 लाइनें होंगी, 2 लाइनें लिखेंगे, उसके बाद 1 घंटा जी। अच्छा सारी बात है। उसके बाद मिर्जा साहब जवाब देंगे, 1 घंटा बोलेंगे, कुछ टाइम फिर सनाउल्लाह अमृतसरी साहब भी लेंगे तहरीर लिखने में, सोचने में, उसका जवाब लिखने में। हजरत साहब का प्रोग्राम सी कि मतलब कोई फिर होता है ना लॉन्ग टर्म पे इस तरह का कोई माहौल बन जाए, घर बंदा दस दे सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह कि भाई वो हुण मामला शुरू हो गए ने, अल्लाह जाने या जिंदगी या नसीब, जिंदगी रही है जो मामला शुरू होया है पता नहीं कदों खत्म होना है। ठीक है, इस तरह दे बंदा घर अलविदाई खत खुत लिख दे, कया सुनिया माफ कर दे, वो मामलात शुरू हो गए तो फिर लंबे काम ने ना। एकदम सलाम अमृतसरी साहब हामी भर लेंदे, वो तो औलाद का मुंह वेखण तो भी गए सी, ये तो जिंदगी मौत के मामले बन गए सी ना, ते मामला खत्म ही नहीं सी ना होना। तुसी यह सोचो सर, एवरेज बना लो भी 2 सतर दे मुकाबले जी तुसी घंटा गल करनी है, भी सारी गल है घंटे तो बाद सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने भी थिंकिंग करनी है, भी सोचना है इस शोखी का की जवाब देना है, लिखना है, क्योंकि 2-3 घंटे 4 घंटे, फिर हजरत साहब घंटा बोलणगे। गल समझ रहे हो? हुण तुसी हिसाब लाओ जे इस किस्म का मुनाजरा शुरू हो जाता और हजरत साहब कह देंगे मैनू मंजूर है। इमरान भाई आपकी कथा कलामी तब भी वो मान गए थे। नहीं वो मान जाते ही शराइत पे। फिर जो मुनाजरे का टाइम होना सी, तुसी आप सोचो मुनाजरा मुकना कदों सी? मुनाजरे का फिर कोई टाइम लिमिट होती है ना। फिर तो घर बंदा वसीयत लिख दे, मेरा कोई पता नहीं मैं जिंदा बचना है नहीं, पता नहीं कितना लम्मा चलना है। वो कोठा चौंदा उत्थे मोमजामा पा दे, वो पुराने वक्तां च भी काम होंदे सी, वो फलानी जगह मैं मतलब अंगीठी थले पैसे रख छड़े ने, रुपया 1,500 उथों कट लो, मेरा की पता। वो फिर बंदा उत्थे बह जाए, लो जी उन्हें कोई काम शुरू करो, पिछा नु अल्लाह दे वारसे मतलब आसरे छड़ आया। इस किस्म का माहौल सी जिहड़ी सरासर बगैरती सी। और तुहानू पता सनाउल्लाह अमृतसरी साहब हुण इस किस्म की मतलब शरत नूं की मनदे, वो क्यों टाइम वेस्ट करते। और पहली जो बड़ी बुरी हरकत की, कहना जी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब को जी आप चोरों की तरह मतलब कादियान में आ गए। तौबा नाउज़ बिल्लाह,
ਤੋਬਾ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕੱਲ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਚੋਰਾਂ ਦੀ तरह उन्हें ਤਾਂ ਆਖਿਆ बचपन च खुद जो पेंशन लैन गए सन। अच्छा चलिए बहरहाल ये तो एक मौजू था, इस पे फिर भी कभी बात हो सकती है। अच्छा जी, हम अब चलते हैं अपने उस असल मौजू की तरफ। मगर मैं यहाँ पर टॉपर हिलियन साहब अगर हमारी बात सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, टॉपर हिलियन साहब मैं आपको जनाब सलूट मारता हूँ कि आपने इतनी इनकी बदतमीजी के बावजूद आपने अपना मौकफ भी बयान कर दिया, खुल खिला के आपने कह दिया कि मेरा ये मौकफ है। मगर इस बंदे को आपको अपने घर तो इसने बुलाया, मगर आपके मौकफ से ये राजी नहीं हो रहा था। ये चाह रहा था कि जिस तरह मैं कहता हूं उस तरह मेरे साथ तुम काम करो, यानी मेरे साथ कलाम करो। तो उसी के बावजूद आपने कहा कि मेरा ये मौकफ है। आखिर उसने आपको निकाल दिया, आपको कहा जाए फिर अपने घर चले जाए, वहां जाके अपना मौकफ बयान करें। यहाँ पे तो वही तरीका होगा, फलाना लग्या होया ते टमकाना लग्या होया ते अमर लग्या, डॉक्टर लग्या। बहरहाल आपको खराज तहसीन है कि आपने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया और इसको वो आपने आईना दिखाया जिसका हमने अभी जिक्र मिर्जा कादियानी के हवाले से कर दिया। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी शेर खान के साथ चोरों की तरह कादियान में एंटर होना, ऐ समझाओ मैनू एक ही वारदात है। सर अगर आज समझान बैठे तो काम लंबा हो जाएगा। चोरों की तरह कादियान में एंटर हो गए भी, कादियान दी चाबियां तेरे कोल सी, वो कादियान दी कंध टप के आ गया है, बहुत फिड़े मुंह भी केड़ी गल कर रहे हैं तू? वो बब्बर शेर खुल खिला के आया, वो केड़ा मतलब लुक छुप के आया मुंह लपेट के ते ये वो मैनू हजरत साहब ना वेख लैन, मैनू इधरों कढ लो उधरों कढ लो। वाहियाती हुंदी ना चोरों की तरह। अगे टोरो जी, ये ते काम ही चवल है। इमरान भाई, ये तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमहुल्लाह थे। मिर्जा साहब का तो खुदा भी चोरों की तरह आता है। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, सही क्या है, तौबा है। बाबर भट्ट साहब बड़ा पॉइंट। वाह 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 वाह। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸुरात सीरियस हो गए ने, खुदा दे वास्ते इतना सीरियस ना हो। ये ते बेगैरत जे लोग ने, तुसी अपना खून क्यों साड़ रहे हो? हंस उस के गल करो। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸुरात मुझे सीरियस नजर आ रहे ने। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आपकी टेबल पे आ रहा है, उसको मुलाहिजा फरमाइए। कि जो मैंने हवाले अभी आपके सामने रखे हैं जिनमें 4 गवाहों का होना जरूरी है जनाब जबर में, इस बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? सर गवाहों की जरूरत इसलिए नहीं है इसमें कि अगर कोई किसी को गवाह करके जना कर ले तो फिर उसका क्या हल होगा? चलो ठीक है, मैं इसका भी आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, आपने सवाल दिया कि जना यानी आपके नजदीक जना बिल जबर में 4 गवाहों की जरूरत नहीं होती, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी सर, जी कहना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, आपका ताल्लुक बरेलवी मकतबा फिक्र से है आप? अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि इस बंदे ने भी अपना वाजिया मौका पेश किया। उसने पूछा कि आपका मकसद है 4 गवाहों की जरूरत नहीं होती जनाब जबर, उसने कहा नहीं। अब उसने भी वही काम किया जो हमारे पहले साथी करके गए, ठीक है। मगर जैसे इमरान जट साहब हमने कहा था ना, इनको फिरका खेलने की आदत है, इसके अलावा तो इनके पल्ले ही कख नहीं। तौबा नाउज़ुबिल्लाह। बरेलवी मसला का भी इसमें क्या है? तौबा नाउज़ुबिल्लाह जनाब जबर की तौबा नाउज़ुबिल्लाह कोई मतलब तायद करते हैं? अच्छा जी, को तुसी 3-4 शामा खोलो हथों, मौलवी, देवबंदी, बरेलवी, इस तरह दी 3-4 शामा खोलो, खुदा दी कसम किसी काम जोगे नहीं, इन्हां नूं दूजी गल ही नहीं आनी। बिल्कुल। इसका मतलब है जो आपने वो कहा था ना कि हिफाजती तदाबीर, उनमें ये भी हम अपने एहतियाती तदाबीर एक है और एक हम उनको दूसरी तदाबीर भी बता दें कि ये 4 चीजें इनसे ले लें तो इनका पल्ले कख नहीं। आहो भाई सानू दस ही देवो ना, जिवें मतलब बंदा दस दिंदा है भैया पक्खा शॉट मारदा तेरा परा होके लगना, बंदा परा होके लग पैंदा है। अच्छा जी, आगे चलिए एडवन साहब। आपके इमाम तो कह रहे हैं कि जनाब जबर में गवाहों की जरूरत होती है और वो ये लिख रहे हैं। अगर आपने हवाला नहीं सुना तो मैं आपको दोबारा फतवा रिज़वी का हवाला दिखा देता हूँ, उसमें वो ये साफ तौर पर लिख रहे हैं। तो फिर आप उनके बारे में क्या फतवा देंगे? पहले दिखाएं। जी बहुत शुक्रिया, वेरी गुड, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अच्छा जी, मैं आपको दिखाता हूँ जी वो क्या बात।
अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे भी सिर्फ हम थोड़ा सा कलाम करेंगे कि उसने इसे कहा, उसने कहा जी पहले दिखाएं, इसने उसको वो फतवा दिखाया, फतवा दिखाने के बावजूद उस बंदे का जो मौकफ है उसने फिर पेश कर दिया अपना, मगर ये एक ही जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं तुम मेरे घर में आए हो, जहां से मैं कहता हूं वहां से बात शुरू करो, ठीक है। तो अब सुनिए आगे कि वो क्या इसको कहता है। इमरान साहब कुछ कहेंगे इस पे आप, या जब बर साहब आप मुख्तसर। ਸੁਣਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆਇਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੱਕਿਆ ਰੱਖ ਦੇਵੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੂੰ ਖਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਖਾ ਕੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਬਾਂਦਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਟੇਬਲ ਮੈਨਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ, ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਮੀਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा आगे सुनिए, कहता जनाब आगे सुनिए, बेवकूफ आगे सुनिए जी, आगे उस बंदे का मौकफ आ रहा है जी, उसने वो देख भी लिया सारा कुछ, उसके बावजूद वो क्या कहता है, सुनिए जी। सर सबसे पहले तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, ये जो इन्होंने लिखा जो भी एक जैद का किस्सा है, उसमें इन्होंने कहा जी वो जनाब बिल जबर हुआ तो उसमें 4 गवाहों की जरूरत है, ठीक है। ये उन्होंने कह दिया, उनकी अपनी एक राय है, उनका एक अपना मौकफ है, ठीक है। अब मैं आपको अपने मौकफ की वो बताता हूँ। आज इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में अगर औरत किसी पर इल्जाम लगाए कि उसने मेरे साथ जिना किया है, तो उसका सबसे आसान हल ये है कि उन दोनों का जो है वो लेबोरेटरी टेस्ट करवा लिया जाए। तो ये आपकी जमात ने क्यों नहीं किया कि जिस पे उसने इल्जाम लगाए हैं लड़की ने, निदा ने, तो उनका वो टेस्ट क्यों नहीं करवाया? जी मैं आपको हाँ जी, अच्छा जी ये देखिए कि एडमन साहब रोकिए जरा। अच्छा देखिए कि उसने वो जो इसने कहा मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ फतावा, इसके बावजूद वो बरेलवी मसलक से भी तल्लक रखता है, और उसने कहा कि उनकी अपनी राय है, ठीक है, और उसने बात वाजिया खोल के रख दी। इसके बावजूद आप देखें कि ये इतना, जो इमरान जट साहब ने कहा ना कि हम बेशरम और ढीठ बंदा है, ये किसी भी तरह बस अपना मौकफ बताना चाहता है, मानने को तैयार नहीं है। इमरान जट साहब आगे चलेंगे, कुछ कहेंगे? नहीं टुरो अगे ते बगैरती अगे टोरो जी, एडमन साहब आगे टोरे कि गल फड़न वाली है दी, ते गल भी इस तरह कर रहा जिवें दर्जा अवल दा मजिस्ट्रेट नहीं पूछ रहा, अच्छा 4 गवाहियां अगे गल करो। सो मतलब स्टाइल वेखो तुसी ओदे, ठीक है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਭਾਨ ਵਾਪਸ ਫੜਾ, ਸੌਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਫੜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਚਿੱਟ ਫੜਾ। ਖਬੀਸ इंसान आगे टूरो जी। सर बात ये है कि आप बात पूरी वो सुनते नहीं, फिर वो स्टूडियो से निकाल देते हैं, क्योंकि ये उसका बटन आपके पास है तो आप ही खारिज करेंगे और आप ही फिर वापस ले लेंगे। ऐसे किसी भी मौकफ की तईद नहीं हो सकती जरूल्ला साहब, ऐसे किसी मौकफ की तईद नहीं हो सकती। एक डिबेट होती है या सवाल जवाब होता है, उसमें आप अगले की पूरी राय सुने, उसको भी मौका दें पूरा बोलने का। मैं कितने तहम्मुल से और कितने प्यार से मतलब एक इसको सारी चीज को मैंने, जैसे दूसरे भाइयों ने अपना माइक म्यूट किया, मैं भी बात करके अपना माइक म्यूट कर लेता हूँ। तो बात यह है कि पूरा एक अगले बंदे को अपना मौकफ बयान करने की वो दें। अच्छा आपने ये कहा कि जी मैं उनसे ये हो गया वो हो गया, मेरी बात सुने। घर में ऐसा होता है कि बड़े भी होते हैं, अपने घर में बड़े होते हैं, आपके भी भाई होंगे, बहन होंगे, वालिद होगा, आपसे बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। तो पूरी जिंदगी उनकी हर बात जो है ना, उससे एग्री करना जो है वो जरूरी नहीं है। इंसान कोई भी काम करता है तो वो उस दौर के हिसाब से होता है। अच्छा निदा ने इल्जाम लगाया है कुछ लोगों पे, खास करके वो जो उनके आपके मिर्जा साहब है उनके साले पे, तो आप वो टेस्ट करवा लें, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि बस ये बात करने से आपका कौन सा, यानी कि वो आप जितनी मर्जी गला फाड़ फाड़ के करते रहे, शो करते रहे जी ये हो गया वो। आप ये बताएं, मेरी आवाज दोस्तों को ठीक आ रही है यार मेरी तरफ?
पता क्यों करते, मैं बताता हूँ इसकी वजह ये है कि आप लोगों को अपने घर के अलावा कोई दूसरा बंदा जानते ही नहीं। घर में भी शायद शनाख्ती कार्ड दे के घुसते हो कि भाई यार मैं आई तो मैंने जान दो, इसलिए आसानी से बड़े आराम से अपने इमाम से रूगर्दानी कर देते। ये इस तरह करो कि एक वीडियो बनाओ, रिकॉर्डिंग करो, उस रिकॉर्डिंग में जी इमरान साहब। शम्स भाई कितना बदतमीज आदमी, शरीफ आदमी ने गल कर रहे हैं। कहता आपको कौन जानता है, ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हों जानता है कोई 4 ਬੰਦੇ जानते हो उन्होंने लाइसेंस मिल जाता है, वो बगैरती करे, है ना। वैसे शरीफ बंदे का काम भी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हें तुम्हारे घर में शनाख्ती कार्ड देखे बगैर भी नहीं घुसने देते, चेक करो भी मुंडे का शनाख्ती कार्ड। भाई आजकल दे वैसे भी तुम देखो ना बट साहब, जदीद सिक्योरिटी सिस्टम ने, सोसाइटीज भी ऐसिया ने भाई गड्डी भावें तुहाडी अपनी होवे तां भी तुहानूं शनाख्त तो बगैर सोसाइटी च नहीं वड़न देंदे, कोई मैने वाली गल नहीं है। भाई जदीद सोसाइटी में यही चल रहा है, तुहाडा अपनी मतलब उत्थे करोड़ां दी इन्वेस्टमेंट है घर है, वो मेन गेट ते कहंदे ने भाई आईडी चेक कराओ जी, नहीं तो अपना कोई आईडी नंबर सामने लाओ ताकि सानू शनाख्त प्रूफ होवे। भाई मुहज्जब सोसाइटी है, हो सकता वड्डे लोग होण, इहदी गल ठीक होवे। हाँ जरीला से आपस की गल है, वो तो चलो शनाख्ती कार्ड सिस्टम है ना, फिर सिक्योरिटी सिस्टम तेरे वाले हिसाब मेरे ख्याल च वो फिर यही होएगा ना भी पैसे वाला सिस्टम, या बाद तो बाद पुछ लेंदे होणगे भाई 10 दिन भेजिया किन्ने है, वो फिर दसना पैंदा फलाने मलक साहब सी, उन्होंने कहा सी मेरा नाम लेना तामन करनगे, मतलब कोई इस किस्म का सिस्टम चलता होएगा। नहीं देखो ना जी, ये शनाख्ती कार्ड नहीं तो फिर कोई रेफरेंस देना पैंदा होएगा, भाई वो फलाने आंदे सी, हाँ हाँ वो उथों मलक साहब, हाँ जी उन्हें कलिया मैनू, जाओ मेरा नाम लो, तावन भी होएगा, बहुत अच्छा बंदा, घर चले जाओ, सीधे सीधे घर चले जाओ, हाँ हाँ ठीक है। देखो भट्ट साहब ये मामला तो हो सकते हैं, मुझे समझ आ रहे हैं कितना घटिया जिंदा बंदा है यार है? अच्छा देखिए इमरान जट साहब, देखिए वो जो हमारे साथी हैं वो कितने तहम्मुल से इससे बात कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि आप बात मौको पूरा सुनते नहीं है, निकाल देते हैं, माइक म्यूट कर देते हैं, और इसका आगे लहजा देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि इसके मनपसंद की बात कोई कर नहीं रहा। हाँ जी, इसको जो ये चाहता है, और अब ये क्या कह रहा है जी, जमाते अहमदिया के सामने कोई टेक नहीं सकते, खोडे च वड़ जाते हैं। आदमी वाकई नहीं टिक सकता भाई, एडी बगैरती कौन सुने। अच्छा और आगे से कह रहा जी तो शनाख्ती कार्ड, इनके तो कब्रिस्तान में जाए ना, कादियानियों के कब्रिस्तान में वो खड़े होकर कार्ड चेक करते हैं बिश्ती मकबरे का कि दिखाओ तुम कादियानी हो कि नहीं। हाँ ठीक। इनके घर में कोई बंदा घुस जाए, वो कहते हैं भी कार्ड चेक कराओ, तू कारोबार गया है, शायद बाहर जाके तू मुसलमान हो गया है और मरजई ना रहे हैं, कार्ड चेक करा अपना। अच्छा से आपस की गल है, शनाख्ती कार्ड दी ने गल करके एक गल ते तय कर दी ना, जिवें साडे भाई ने ताना मारिया भी तेन शनाख्ती कार्ड देखे बगैर घर नहीं वड़न देंदे, एक गल ते तय हो गई कि ओदी कोई शनाख्त है, ओदी कोई शनाख्त है ते शनाख्ती कार्ड बनया है, ऐ ते तय हो गया। ओदी कोई शनाख्त है शम्स भाई, फिर ही शनाख्ती कार्ड बनता है ना, ऐसे तरह ही भी उन्हें अपनी शनाख्त दस के शनाख्ती कार्ड बनवा ला, ये तू प्यो दा पुत्र है, पुत्र अपना शनाख्ती कार्ड बगा, की शनाख्त लिखी है तेरी, वाह कदी बगा स्ट्रीम पे आके जरीला बल्द, हाँ वो भी दिखाई ऐसा वाह खुदा दी कसम, हर शहर अपने वालों मशकूक कर रहे हैं, जिवें शनाख्ती कार्ड ना बहुत गंदी चीज होंदी है। चलो एनीवे अच्छा जी आगे चलिए जी, एडमिन साहब जरा देखिए क्या कहते हैं। जरीउल्लाह साहब बात पता क्या है, मेरे कोई बात करने से ना वो जो हकीकत है ना वो छुप नहीं जानी। कोई एक वाकया हुआ है, वो मेरे बात करने से, मैं कोई भी बात कर दूं, आप डिनाई कर रहे हैं, मैं उसके हक में हूं, तो क्या उसका कुछ हुआ? ठीक है, जिस मुल्क में ये हो रहा है ना उसका कानून अच्छे तरीके से सारा कुछ देखिए मैंने आपकी तकरीर सुनने के लिए तो मैं जहां बैठा हुआ नहीं हूं, मैंने आपसे जो बात की है वो बात करनी है आपने। मैंने
अच्छा, इसमें यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट किया है, ये बड़ा कमाल का कमेंटर, लाइफ एम्प्टी के नाम से ये कोई चैनल है। इसमें वो ये लिख रहे हैं कि मोहम्मद साहब आजकल तो आबादी बढ़ गई, पहले के मुकाबले में तो गवाह ज्यादा मिल सकते हैं। ले जनाब, एलो जो बात वो की थी, और वो भी एक अजीबो गरीब सी बात कर दी है, उसमें तो गवाह भी ज्यादा मिल जाएंगे, इनका रास्ते बहुत हो गया तो गवाह भी ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छा, ये बात भी अच्छा जी, एक तो इसने देखें कितनी बदतमीजी की है, आखिर में उस बंदे को कह रहा है कि जी आप इस प्रोग्राम में आए हैं, ये है वो है, और फिर आखिर में एक कमेंट दिखा रहा है कि किसी बंदे ने, वो किसी कादियानी ने ये कहा कि आजकल तो आबादी ज्यादा होगी, गवाह मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी कसरे खिलाफत में इजाजत दें ना, ताकि वहां भी आबादी ज्यादा हो, लोग जाएं, फिर आप गवाहियां मांगिएगा, वो आपको गवाह देंगे। आपके अंदर से तो कोई ऐसा केस उठता है तो आप पता चल जाता है आपको। आपने तो वहां पे ड्यूटीज लगाई हुई है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एक वाकया, बाबर भट्ट साहब, पिछले दिनों मैं चनाब नगर गया। अच्छा, मैंने वहां एक अपने मिलने वाले से कह दिया कि यार आओ बैठो गाड़ी में, जरा फलां जगह जाना है। यकीन कीजिए उसने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। मैंने कहा खैरियत है? कहने लगा यार तुम पिछली दफा आए हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम जितने दिन यहाँ रहे हो, तुम्हारे पीछे दिन रात 2 मोटरसाइकिलों पे ड्यूटी लगी हुई थी बंदों की। तुम कहाँ कहाँ जा रहे थे, कहाँ तुम किससे मिल रहे थे, सारा कुछ। और तुम जिससे मिल के जाते हो, फिर उनकी बाद में तफ्तीश शुरू हो जाती कि ये आपसे मिलने क्यों आया था। वाह। तो मैं आपकी गाड़ी में बैठ गया तो खाम में मुझे अमूमी वाले बुला लेंगे और वो बात का बतंगड़ बनाएंगे, हाँ हाँ तू शमसुद्दीन ना गड्डी बैठ के की गल्ला की हैं। तो इसलिए तुम्हारी मेहरबानी, ये देखो हमारे हाथ बंधे हैं, तुमने जहां जाना जाओ, हमें ना अपनी गाड़ी में बैठाओ। तो आपने तो लोगों को इस तरह डरा धमका के रखा हुआ है। मैं वहां फिरता हूं तो मोटरसाइकिल के बंदे पीछे लगे होते हैं कि ये यहाँ पे क्या करने आया है, क्या हो रहा है। मगर इसने अपनी वीडियो के अंदर इस शेर खान को कुछ मशवरे दिए और उसे कहा कि तुम एक वीडियो बनाओ और उसके अंदर ऐसा ऐसा कहो कि मेरे वो जो इमाम है, मैं उनकी बात से इख्तलाफ करता हूं, मैं उसको ये नहीं समझता। तो कटा तहकीक, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं, जैसे तुमने हमारे उस दोस्त को ऑफर दी है, मैं ऑफर देता हूं। तो वजह से सुनो और गौर से सुनो कि तुम एक वीडियो बनाओ। तुमने उसे कहा था कि मैं अपने चैनल पे लहदा सेपरेट चला दूंगा, सारा कुछ ये वो करूंगा, तुम्हें याद है सारी बातें, और जिसने वो वीडियो मुकम्मल देखी है उसको भी याद होगा। मैं तुम्हें अब उसी का जवाब देने लगा हूं, तवज्जो से सुनना, कि तुम एक वीडियो ऐसी बनाओ जो मैं अपने चैनल पे अल मारूफ आरबी और शमसुद्दीन आरबी के नाम पे जो मेरा चैनल बना इस पे चलाऊंगा। तुम कहो कि मेरा ताल्लुक अहमदिया कम्युनिटी से है, मेरा ताल्लुक हजरत जो आपके इमाम है जमात के अहमदिया के, कि मैं उनको अपना पेशवा मानता हूं और कादियानियत पर मेरा जीना और मरना है। मिर्जा मसरूर की ये ऑडियो जिसमें कहते हैं कि तुम खामोशी इख्तियार करो और अगर शोर डालोगी तो चंद दिन 4 दिन सोशल मीडिया पर शोर पड़ेगा, फिर सब खामोश हो जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा। और जो बात वो निदा कह रही है कि कंजर खाना खुला हुआ है कसरे खिलाफत में, इसका जवाब मिर्जा कादियानी ने नहीं दिया, इसका जवाब मसरूर ने नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो तस्लीम करता है कि वाकई कंजर खाना खुला हुआ है कसरे खिलाफत के अंदर। इस वीडियो में एक औरत के साथ नाइंसाफी का मामला है। याद रखना, तुमने इस किस्म की बातें हमारे दोस्त के साथ की हैं, हम तुम्हें इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि इस ऑडियो में एक औरत के साथ नाइंसाफी का मामला हो रहा है। इसलिए मैं आज से इस इमाम से ऐलान का बरात करता हूं, ऐलान बरात करता हूं। वो मेरा तल्लक अहमदिया कम्युनिटी से है, मगर इस मौजूदा इमाम से मैं बरात ऐलान करता हूं। मेरे नजदीक ये ऑडियो में इमाम जमात के जो अकायद हैं, जो बयान है, वो गैर कानूनी है, बिल्कुल गलत है, गैर शरई है, खिलाफे अकल हैं। ये बातें बयान करें, ये बातें बयान करें आप,
آپ کا یہ کلپ میں سیپریٹ طور پر اپنے چینل پر چلاؤں گا. یہ آپ کو اسپیشلی آفر ہے. اسی قسم کی آفر آپ نے ہمارے مسلمان دوست کو دی تھی. یہ آفر ہم آپ کو لوٹاتے ہیں. آپ اپنے پروگرام میں یہ کہیے, ہم انشاءاللہ اس کو چلائیں گے. اور جو تم نے کہا کہ آخر میں ایک بندے نے کمنٹ کیا بڑا زبردست, وہ تمہارا مرزئی تھا جو ایم ٹی اے پہ اس نے کمنٹ کیا ہے, کہ بڑا تم نے کہا کہ بڑا کمال کمنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جی آج کل آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو گواہ مل جاتے ہیں. تو میں کسی کے حق میں ایسی بد دعا نہیں کرتا, مگر تم نے یہ جو بات کی ہے اس بارے میں ضرور کروں گا کہ اللہ کرے تمہارے کسی اپنے اسی طرح کے قریبی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے, اور پھر تم 4 گواہ ڈھونڈتے رہو, اور پھر مرزا مسرور سے کہو کہ میرے پاس اس وقت 4 گواہ تو نہیں ہے مگر یہ معاملہ ہو چکا ہے, بتائیں میں اس کا کیا جواب دوں. تو پھر جو مرزا مسرور تمہیں جواب دے گا اس کو تم نوٹ بھی کرنا اور پھر اپنی سٹریم میں بیان بھی کرنا. میرا خیال ہے تمہیں میری باتوں کی سمجھ آ چکی ہوگی. اب میں دیکھتا ہوں کہ تم یہ ویڈیو بنا کے سیپریٹ اپنے پروگرام میں یا ہمیں بھیجتے ہو کہ نہیں بھیجتے. تم نے کہا تھا نا باتیں کرنی بڑی آسان ہے. وہ ہمارا دوست کوئی یوٹیوب چینل نہیں چلاتا جس کو تم نے کہا تھا کہ تم اپنے امام کے بارے میں ایسی ویڈیو بناؤ اس میں یہ باتیں کہو, مگر تم اور میں دونوں ایک یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. آؤ میدان میں اس طرح کی بناؤ ویڈیو اور پیش کرو, پھر میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں جماعت کیسے قبول کرتی ہے. تم جہاں بیٹھے ہو وہیں سے تمہیں وہ اٹھا کر پاکستان میں واپس بھیجیں گے, اور تم وہیں سرگودا والی سائڈ پہ دھکے کھاتے رہو گے ساری زندگی. تم کہتے ہو کہ ہم منہ توڑ جواب دیں گے, ہم منہ توڑ تمہیں جواب دیتے ہیں. بناؤ ایسی ویڈیو. جی عمران جٹ صاحب اور بابر بٹ صاحب, ہمارے ساتھ زید صاحب بھی موجود ہیں. زید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زید بھائی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شمس الدین بھائی شکریہ, معذرت میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. پروگرام جو آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں تو صرف ایک چھوٹا سا سوال ان سے کرنا چاہتا ہوں. جری اللہ ہے, حکیم یا جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے ان کے خلیفے ہیں, میرا تو ان سے چھوٹا سا سوال ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. سوال میرا یہ ہے کہ خدا نہ کرے, میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, بہرحال اب مجبوراً مجھے یہ سوال کرنا پڑ گیا. آپ نے کچھ وہ بات کر بھی دی ہے کہ اگر جری اللہ یا حکیم یا سلیم میر اور یہ مبارک, یہ جو 5-7 ملنگ ہیں ان میں سے کسی کی بہن, بیٹی یا بیوی کے ساتھ اللہ نہ کرے ریپ ہو جاتا ہے تو ان کو 4 گواہ نہیں ملتے. اب یہ جو خلیفہ صاحب کی تائید میں 4 گواہ کا رولا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا اگر ان کے گھر کی کسی عورت کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے, کیونکہ یہ بھی پاکستان سے گئے ہوئے ہیں, اور محمود شاہ جو ہے وہ یہاں پہ بڑی کارروائیاں ڈالتا رہا ہے, ڈاکٹر مبشر, کیونکہ اب کھل کے سامنے آ گیا سارا کچھ, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کسی خاتون کے ساتھ یہ واردات ہوئی ہو. تو یہ 4 گواہ نہ ہونے کا ان کو کریڈٹ دیں گے, ان کو معاف کر دیں گے جنہوں نے زیادتی کی ہوگی ان کی کسی خاتون کے ساتھ, کہ بھائی 4 گواہ اگر موجود نہیں ہیں تو ہم جناب آپ سے معاف کر دیتے ہیں آپ کو, اگر آپ نے زیادتی کی بھی ہے تو وہ تسلیم نہ کرے. چور شمس الدین بھائی کب یہ مانتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے؟ جو خلیفہ صاحب یہاں پہ یہ بونگی مار رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہا جی, وہ چور کب مانتا ہے میں نے چوری کی ہے؟ اب آپ کے زید بھائی, گواہ نہیں ہیں. زید بھائی قطع کلامی کی معذرت, جو سیرت المہدی کے اندر واضح حوالہ لکھا ہے کہ مرزا قادیانی پنشن لے کر چلا گیا اور باہر یاشی میں اڑا دی, آج تک قادیانی جماعت یہ نہیں مانتی کہ اس نے واقعی چوری کی ہے, پنشن اڑائی ہے باپ کی, تو یہ کہاں مانیں گے؟ بالکل آپ بات جاری رکھیے, جزاک اللہ. اور شمس الدین بھائی پینشن تو چھوٹی سی واردات ہے, ننگے خواب دیکھتا رہا, ننگی عورتیں دیکھتا رہا خواب میں, اس کے سامنے ننگی عورتیں نہاتی رہی ہیں, یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں, وہ نہیں مانتے یہ. بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ کب مانے گا چوری جس نے چوری کی ہے؟ اگر محمود شاہ نے یہ حرکت کی ہے تو وہ کب تسلیم کرے گا؟ ایک طرف سے تو ہو گیا نا کلیئر, دوسری طرف سے اب آپ کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہے,
तो मुझे सिर्फ ये मर्ज़ई इतना बता दें कि ये अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे, जो इनका मुजरिम होगा उसके खिलाफ किसी कोर्ट में जाएंगे, अदालत में जाएंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, या अपनी खातून जो है उसको कहेंगे कि चुप करके बैठ जा, तेरे को गवाह नहीं है। इसका मुझे जवाब जरूर दें अपनी स्ट्रीम में, ताकि मुझे भी तो पता चले कि खलीफा साहब ने अगर 4 गवाह निदा से मांगे हैं तो क्या आप लोग जो है वो 4 गवाह ही मांगेंगे, या ये सारी फक्की जो है सिर्फ अपने खलीफे को बचाने के लिए आप लोग जो है यहाँ पे बेच रहे हैं कि 4 गवाह नहीं है तो वो औरत झूठी है। और जो फतावा रिजविया की बार बार ये बात करते हैं, उसमें पहले देखे तो सी बात लिखी क्या हुई है। वो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि फतावा रिजविया उठा के पेश तो कर दिया है, लेकिन अक्ल होती तो मर्ज़ई ना होते ना कम अज कम। वहां पे ये तो देखो लिखा क्या हुआ है फतावा रिजविया में, कि अगर किसी औरत का किसी मर्द के साथ तनाज़ा है और उसने उसके ऊपर लगा दिया रेप का इल्जाम, तो वो तो एक मामला ही अलग है, उसको उठा के तुम कहाँ पे जोड़ रहे हो। वही हरकत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाली, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। बहरहाल मेरा सवाल आप लोगों से यही है, अपनी स्ट्रीम में आपने बड़ा शौक है ना आपको लोगों को कहने का कि वीडियो बना के इसका जवाब दीजिएगा, तो जरीउल मलंग साहब, जरीउल यलाश साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल है कि वीडियो में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि आपके घर की किसी खातून के साथ ज्यादती हो तो क्या आप 4 गवाहान की मौजूदगी का उसको फायदा देते हुए मुल्जिम को छोड़ देंगे कि इसके पास हमारी खातून के पास 4 गवाह नहीं है, चलो हमने तुम्हें माफ किया, या आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे जरूर दीजिएगा अपनी स्ट्रीम में। जी शुक्रिया शम्स भाई। जैद भाई बहुत शुक्रिया। वैसे यकीन कीजिए, अगर कहीं जो अमतुर रशीद थी ना, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब की बेटी, जिसके बारे में यूट्यूब पर गवाहियाँ भी लोगों की पड़ी हुई हैं और जिसके बारे में सारा कुछ मौजूद है, अगर ऐसा कहीं वो भी इस चीज़ को उछालती ना, तो इन लोगों ने उससे भी यही मुतालबा करना था। खिलाफत को बचाने के लिए ये इसी किस्म के करेंगे। चाहिए देखें ना, मिर्जा ताहिर की पोती है ना, क्या सलूक कर रहे हैं। हम तो रशीद बेचारी, उसको पता था कि ये जो कल्ट है ये क्या कुछ करता है, तो बस वो अपने अंदर ही उस तकलीफ को लेकर। शमस भाई कता कलामी की माजरत, अब देखें बेचारे बदकिस्मत कितने हैं मिर्जाई, मसरूर को बचाते हैं तो मिर्जा ताहिर के सर में जूते मारते हैं। मिर्जा ताहिर कहता है कि रेप केस में 4 गवाहों की जरूरत ही नहीं है। अब मसरूरे को बचाने के चक्कर में मिर्जा ताहिर के सर में जूते मार दिए हैं इन्होंने। जी आप जारी रखें। सर मिर्जा ताहिर के सर पे जूते क्या मारे हैं, मिर्जा ताहिर की पोती के साथ इन्होंने ये सलूक कर दिया है। आप खुद उस अल्लाह माफ करे, तौबा है। इमरान जट साहब कितने चले गए हो? जायद साहब ही आए हुए ना जनाब। चलिए मेरे जैद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप अभी जो आपने जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, मुझे लगता है वहां से अभी आप फारिग नहीं हुए, वरना आप शुरू में ही हमारे प्रोग्राम में आने वाले साथी हमारे। तो मजीद अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, वरना चूंकि हम स्ट्रीम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, आपका पैगाम जो है ये इन तक पहुंच गया है। अल्लाह करे अगर ये मुखलिस होकर इसका जवाब देना चाहें तो ज़रूर दें। बहुत सारे आज हमने इन पर सवाल उठाए हैं, इनको बताया है। अभी इंशाल्लाह आगे भी इनकी जो स्ट्रीमें हैं उनमें से हम ऐसे ही पॉइंट निकाल कर इन पे सवाल करेंगे। मगर एक बात ज़रूर है, कल को ऐसा होना है कि ये जो फातेदारी है ना, ये मेरी बात तवज्जो से सुन ले। फातेदारी, तुम अपने बीवी, अगर तुम्हारे बच्चे छोटे हैं तो उनको कहीं साइड पे लेके निकल जाओ, वरना अगली जो इनकी पीढ़ी आएगी ना, अगर अल्लाह ना करे तुम्हारे बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा हो गया ना, तो उस वक्त तो मिर्जा मसरूर नहीं होगा कि जो तुम्हारी साइड ले सके, जिस तरह आप इस वक्त अपने सालों की साइड ले रहा है। तो फिर तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। फिर ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे साबका खलीफे की बेटी है मतलब पोती है, तो ये मामला है। फिर ये इसी तरह करेंगे। ये कल्ट कसरे खिलाफत के अंदर जो कंजर खाना खुला हुआ है बकौल निदा के, ऐसा ही होता रहेगा। मुझे बहुत अरसा पहले एक बुजुर्ग की बात याद आई। उस वक्त चूंकि हम छोटे होते थे और हमें इतना शौर नहीं था इस बारे में कि ये क्या मामलात हैं।
جب اس بزرگ کا قادیانی جماعت سے خراج کیا گیا تو انہوں نے بھری محفل میں ایک بات کہی، اور وہ بات میرے کانوں میں آج بھی گونج رہی ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اتنی سی بات پر اخراج میرا کیا گیا ہے، یعنی بہت معمولی سی چھوٹی سی بات تھی، اگر اتنی سی بات پر میرا اخراج کیا گیا ہے تو جو بشیر الدین، ایسے انہوں نے کہا تھا کہ جو وہ اپنی بیٹی سے زنا کرتا رہا اس کا کیوں نہیں اخراج کیا؟ تو چونکہ اس وقت تو ہمیں اتنا اس بات کا شعور نہیں تھا، مگر اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بھی ان بزرگوں نے بہت بڑی بات کہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی چناب نگر کے لوگوں کو پتا تھا کہ قصر خلافت کے اندر کیا ہوتا ہے، مگر جیسا میں نے بتایا کہ زبانیں نہیں کھلتی، زبانیں بند کی ہوئی ہیں۔ جیسے بابر بٹ صاحب نے وہ تالا لگا کے دکھایا، اس طرح ان لوگوں کے لبوں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں، مگر اندرون کھاتا سب کو ان کا پتا ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کیا گند کھیلے جا رہے ہیں۔ بہت شکریہ زید بھائی، آپ نے اتنا لیٹ یعنی کہ ہمیں جوائن کیا، مگر رات کے 12:30 بج گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، شدت سے آپ کی اس پروجیکٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، صحت تندرستی کے ساتھ آپ واپس آئیں اور ہماری جو سٹیم ہے اس کو اسی طرح آگے لے کے چلیں۔ عمران جٹ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے سر۔ سر بس ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کچھ کہیں گے یا آپ ایک منٹ رکیے، میں بابر بٹ صاحب سے پہلے پوچھ لوں۔ بابر بٹ صاحب، آپ کچھ کہیں گے؟ جی شمس بھائی صاحب، پہلے تو بات یہ ہے کہ زید بھائی نے جو بات کی ہے نا بڑی زبردست ہے، اور میرا یہ سوال میں بھی چھوڑے جا رہا ہوں قادیانیوں کے لیے کہ سب سے پہلے وہ میں یہ بتائیں کہ یہ جو زنا بالجبر کا کیس ہے، کیا اسلامی شریعت کے مطابق اس کا فیصلہ چاہتے ہیں آپ؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیں، پھر پہلے یہ فیصلہ یہ کر لیں، یہ بات طے کر لیں کہ یہ جو فیصلہ ہے زنا بالجبر کے کیس کا، یہ اسلامی شریعت کے مطابق آپ چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات، بڑا دکھ ہوا وہ جو کامنٹ آپ نے پڑھا تھا نا، کس نے لکھا ہے کہ آقا اپنے غلام کا مالک ہوتا ہے، تو میں انہی صاحب سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کی بیٹی یا بہن یا ماں کا بھی یہی مالک ہے، تو پھر اگر آپ کے ساتھ یہ کچھ ہو جائے تو ٹھیک ہے؟ بس یہی میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جی زید بھائی، آپ کچھ کہیں گے آخر میں، پھر ہم عمران جٹ صاحب کی طرف چلیں اور پھر دعا کروائیں۔ جی شمس الدین بھائی شکریہ۔ یہاں پہ کہوں گا میں اتنا ہی کہ وہ کہتے ہیں نا، شاعر نے کسی نے کہا تھا کہ آج زد میں ہوں میں تو خوشگواں نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں۔ تو آج اگر ندا زد میں ہے تو کل آپ کی عورتیں جو ہیں وہ بھی آئیں گی سامنے، تو پھر سب کے ساتھ ہی ہوگا یہ معاملہ، کیونکہ وہ اس نے خود بتایا کہ یہ کنجر خانے کھلے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے عہدیداران ہیں وہ عورتوں کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو اگر ندا مرزا طاہر احمد کی نواسی اور مرزا خاندان کی لڑکی محفوظ نہیں ہے، تو آپ کی عورتیں تو پھر جناب روڈ پہ پڑی ہیں۔ یہ 4 گواہوں والی بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کو ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر کے دے دیا ہے مرزا مسرور نے کہ میرے عہدیداران جس کے ساتھ مرضی منہ کالا کرتے رہیں، جس کے پاس 4 گواہ نہ ہوں وہ میری طرف نہ آئے، وہ سوال نہ اٹھائے، وہ انصاف کے لیے آواز نہ اٹھائے، بس اپنی ختمون جو خواتین ہیں آپ کی، ان کی عزتیں لٹواتے رہو اور ہمیں چندہ دیتے رہو، بس نہ 4 گواہ ہوں گے نہ انصاف ملے گا۔ تو اگر آپ لوگوں نے اب بھی آواز نہ اٹھائی تو پھر تیاری رکھیں، یہ 4 گواہوں والا جو سٹینڈرڈ سیٹ کر رہے ہیں نا آپ مرزا مسرور کے پیچھے لگ کے، یہ آپ اپنے گلے میں پھندا ڈال رہے ہیں۔ تو سوچنے کا وقت ہے ابھی بھی، اگر آپ کے اندر اب کوئی عقل اور شعور ہے تو سوچ لیں۔ اگر آپ اب بھی نہیں سوچتے، اب بھی آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، تو پھر آپ اپنی عورتیں تھالی میں رکھ کے مرزا خاندان کو پیش کر رہے ہیں، ان عہدیداران کو پیش کر رہے ہیں، ان کو کھلی چھٹیاں دے رہے ہیں کہ ہماری عورتوں کے ساتھ منہ کالے کرو اور عیاشیاں مارو۔ جی شمس بھائی شکریہ۔ اچھا، کل میں انشاءاللہ کل یا منگل والے دن کوشش کروں گا، میرا اگر ان صاحب سے رابطہ ہو گیا تو میں ان سے اجازت لے لوں، میں آپ کے سامنے ایک ریکارڈنگ پیش کروں گا کہ اس کے اندر ان صاحب نے واضح طور پر
इस वजह से कादियानियत को छोड़ा है। उसने कहा कि निदा को इंसाफ नहीं मिला, और ऐसी खिलाफत जो एक लड़की को इंसाफ ना दे पाए वो बिल्कुल सरासर गलत है। उसने कहा निदा इसको छोड़े या ना छोड़े, उसके ज़हन में क्या चल रहा है क्या नहीं, मगर मुझे इसका नहीं इल्म। मगर मुझे इस बात से बड़ी हैरानगी हुई है, और मेरी जो गैरत है उसने गवारा नहीं किया कि जो जिसको हम खलीफा बनाए बैठे थे वो इस किस्म के आगे से एक औरत को जवाब दे। उसने कहा कभी भी कादियानियत को ना छोड़ने का सोचता, अगर सिर्फ मिर्जा मसरूर इतना कह देता, उसको तसल्ली देता, उसके एतमाद को ठेस ना पहुंचाता, उसे कहता कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं, तुम गम ना करो, मेरा साला है या मेरा बेटा है या मेरा दामाद है, मेरा बहनोई है, मेरा बाप है, कोई भी है, तुम्हें इंशाल्लाह मैं इंसाफ दूंगा। उसने कहा जी हमें अपने खलीफे पे फख्र होता, मगर जो इसने बातें की हैं उसको चुप कराने की कोशिश की है कि तुम चुप कर, जो बोलो ना, ऐसा होगा, क्या फायदा होगा, 4 दिन शोर पड़ेगा। उसने कहा ऐसा बंदा कभी भी उस म्यार पे नहीं आ सकता जो हमारे सामने, उसने फिर कहा, उसने कहा जो हमारे सामने खुलफाए राशिदीन का म्यार है उस पे नहीं आ सकता, बहुत बड़े धोखे में हम रहे। तो मैं राब्ता कर सके उनसे पूछूंगा कि भी वो क्या कहते हैं, और फिर हम आपके सामने उस छोटी सी ऑडियो पेश करेंगे कि भी ये देखिए ये बंदा जो है इसने कादियानियत इस वजह से तरक की है, वो खुद कह रहा है। तो चलिए जी, आखिर में जो हम इमरान जट साहब की तरफ चलते हैं और फिर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। इमरान जट साहब, शोखा मुंडा आपने देख लिया, अभी भी वो भंवर में फंसा हुआ है, जी जी कोशिश कर रहा है किसी तरह। क्या कहेंगे आखिरी कलामात आपके? नहीं सर, उसकी कोशिश थी, उसने किया है। बहरहाल आज की स्ट्रीम में हमने जो वो एक्सपर्ट राय थी इदरीस साहब की, जो कि लॉयर है और यूएस बेस है, तो उनकी भी एक्सपर्ट राय आ गई। बहरहाल शम्स भाई 3 घंटे से ऊपर स्ट्रीम हो गई है, ज्यादा कुछ बात करने के काबिल तो है नहीं, तकरीबन सारी इसकी स्ट्रीम का जायजा तो ले चुके हैं। अल्लाह ताला निदा को भी इंसाफ अता फरमाए और उसको ईमान की हदायत अता फरमाए, क्योंकि अभी भी वो ईमान से दूर है, उसके भी आंखें खुलने वाली हैं। अगर ये छोटा सा कादियानी वहां से इस केस पे बाहर आ गया है कल्ट को छोड़ के, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके भी हाल पे रहम फरमाए और इसको भी सोच आ जाए कि मैं इस निज़ाम से निकलूं। बहरहाल शम्स भाई, आप अपना प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलिए। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया तमाम उन हजरात का जिन्होंने हमें यूट्यूब पे सुना या बाद में भी हमें यूट्यूब पे सुनेंगे और अपनी राय से हमें आगाह करेंगे। मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहां से नोट फरमा लीजिए। कट्टा तहकीक वाले, मैं सिर्फ तुम्हें इतना कह दूं, हमारे मुसलमानों के अंदर अल्लाह ने इतनी जुर्रत दी हुई है कि वो अपना मौकफ बयान कर सकते हैं। तुम्हारे अंदर तो इतनी भी जुर्रत नहीं है कि तुम अपना मौकफ ही बयान कर सको। तुम्हें तो इस तरह इन लोगों ने बांधा हुआ है कि तुम तो बोल ही नहीं सकते। बकायदा लेटर जारी कर दिए जाते हैं कि कोई मर्ज़ई जबान ना खोले, जो जबान खोलेगा उसकी जबान काट दी जाएगी। आपने देखा कि हमारे साथी आपकी स्ट्रीम पर गए, उन्होंने अपना मौकफ बयान किया, और तुम ये चाहते थे कि ये दूसरों को बुरा भला कहें। तुमने यहां तक लफ्ज इस्तेमाल किए कि तुम ये कहो कि मैं इन बुजुर्गों की इन चीजों को जूती की नोक पर लेता हूं। मगर उनका तहम्मुल देखा तुमने, उनका तुमने गुफ्तगू करने का अंदाज देखा। इसके बावजूद उन्होंने कहा जी हमारा मौकफ ये है, अगर हमसे पूछते हैं तुम हमारी स्ट्रीम में आओ, हम तुमसे तुम्हारा मौकफ पूछेंगे, तुम सिर्फ अपना मौकफ बयान करना, अपने बड़ों को तुम भी बुरा भला ना कहना, अपने बड़ों के बारे में कोई लफ्ज ना कहना। आओ तो सही, हम पूछे तो सही तुम्हारा मौकफ क्या है। मगर मुझे यकीन है कि तुम नहीं आओगे।
जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, वो नफरत के सबब उठी थी जो ललकार किसकी थी, हमारे खून की प्यासी थी जो तलवार किसकी थी, हमारे खून की प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दनें मत काटिए, बस ये बता दीजिए, जिसे वो सर पे बांधे थे वो शलवार किसकी थी, जिसे वो सर पे बांधे थे वो शलवार किसकी थी, जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। या अल्लाह, जो कुछ भी कहा अगर इसमें कोई हमसे गलती कुताही होगी है तो या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, इन लोगों की आंखें खोल दे जिन लोगों की आंखें इस नाम नेहाद खिलाफत ने बंद की हुई हैं, जिनकी ज़बानें नाम नेहाद खिलाफत ने बंद की हुई हैं। या अल्लाह, इन लोगों को बोलने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, इन लोगों को इस्लाम को कबूल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, जितने ये मजबूत अपने कल्ट में रहकर हर बुराई देखकर आंखें बंद करने वाले हैं, या अल्लाह, इनको आंखें खोलने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ मेरे परवरदिगार, जितने हमसे गुनाह हुए हैं, जिस तरह भी हुए हैं, किसी तरह भी हुए हैं, या अल्लाह, हम उन तमाम गुनाहों की तुझसे माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, जो लोग घरों में बीमार हैं, स्पेशली हमारे ख़त्म नबूवत के मुजाहिद अलामा साहब, मौलाना कासम साहब की जो वाइफ का ऑपरेशन हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ है। या अल्लाह, उनकी वाइफ के लिए मज़ीद आगे आसानियाँ पैदा फरमा, मौलाना साहब के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमा, उनकी इस मज़ीद पर जो परेशानियाँ हैं उसको दूर फरमा दे, उनकी वाइफ को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमा दे। जितने मुसलमान घरों में, अस्पतालों में, जहाँ कहीं बीमार है मेरे परवरदिगार, चाहे कोई छोटा मसला है चाहे बड़ा मसला है, या अल्लाह, ये सारे मसले जो हैं, सारी बीमारियां हैं, इन सब से मुसलमानों को निजात अता फरमा दे। हमारे अबैदुल्लाह भाई, कल उनको हार्ट अटैक का मसला बना है, बहुत मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं। मैंने मशवरा दिया था कि इतनी काम ना किया करें, आपको पहले भी मसला है या अल्लाह, मगर वो तेरे दीन के लिए इस काम में लगे रहते हैं मेरे परवरदिगार, उनको सेहत कामला अजला अता फरमा दे। या अल्लाह, जिन बच्चों के और बच्चियों के रिश्तों का मामला है, वालिदैन परेशान हैं मेरे परवरदिगार, उनके लिए बेहतरीन अच्छे रिश्ते अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, जो माँ बाप अपने किसी भी वजह से, किसी बच्चों की किसी भी परेशानी की वजह से परेशान हैं, कोई भी परेशानी है, नौकरी है, स्कूल है, पेपर है, जो भी है मेरे परवरदिगार, उन वालिदैन को उस परेशानी से निजात दिला दे, उन बच्चों को हदायत अता फरमा दे। ऐ मेरे परवरदिगार, जो कुछ हमने मांगा है वो सब हमें अता फरमा दीजिए, और जो नहीं मांग सके मेरे परवरदिगार, वो हमें बिन मांगे अता कर दीजिए, जो हमारे हक में बेहतर है। या अल्लाह, बहुत से फितने उठ खड़े हुए हैं, इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, इस्लाम का लबादा ओढ़कर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अंदर से हैं चाहे वो हम बाहर से हैं। या अल्लाह,
या अल्लाह इस्लाम की इन तमाम फितनों से हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जब इमाम मेहदी इस दुनिया में अपना ऐलान करें, उनकी बैत हो, या अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम सच्चे इमाम मेहदी के लश्कर में शामिल हो जाएं। या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो, या अल्लाह अगर हमारी ज़िंदगी में हो तो हमें तौफीक अता फरमा दीजिए कि हम उस लश्कर में भी शामिल हो सकें। या अल्लाह जितनी भी खैर भलाइयाँ हैं, जितनी भी खैर भलाइयाँ हैं, जो जो खैर भलाइयाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए मांगी हैं, या अल्लाह वो तमाम खैर भलाइयाँ इस उम्मत को अता फरमा दीजिए। या अल्लाह ठीक है हम गफलत करते हैं नमाजों में और दूसरे कामों में, ए मेरे परवरदिगार हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह तू हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम ऐसी गफलत ना करें और सही तरह दीन को ताबेदारी करते हुए उसके मुताबिक अपने आप को चलाने की कोशिश करें। या अल्लाह जिन जिन शरूर से, जिन जिन फितनों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की पनाह मांगी है, या अल्लाह हम भी उन शरूर फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा माफ़ फरमा दीजिए। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, अपने सही इस्लाम पर जा चुके हैं, या अल्लाह उन सब की कब्रों को मुनव्वर फरमा दीजिए, उन सब के लिए आसानी वाला मामला फरमा दीजिए। या अल्लाह इस दुनिया से जो शख्स भी जाता है उस शख्स के लिए एक नई दुनिया आगे चलती है, या अल्लाह उसमें भी उसकी हिफाजत फरमा दीजिए जो सही इस्लाम पर चलने वाले हैं। कादियानियों के लिए, अपने वालदैन के लिए मैं बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगता हूँ, खास करके अपने वालदैन के भी लिए। और जब अपने वालदैन के लिए दुआ मांगता हूँ तो फिर पूरी उम्मत कादियानी के लिए भी दुआ मांगता हूँ। या अल्लाह खाली मेरे वालदैन को ही नहीं बल्कि पूरी कादियानी उम्मत को भी इस्लाम की दौलत से माला माल कर दीजिए, जो सही इस्लाम है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके आए हैं, ये नहीं कि जो मिर्जा कादियानी लेकर आया है। या अल्लाह चूंकि वो उसी को इस्लाम समझ बैठे हैं, तो या अल्लाह ये मैं तुझसे दुआएं मांगता हूँ, मेरी दुआएं कबूल फरमा ले और इन कादियानियों को मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। ये मिर्जा गुलाम कादियानी को जो हजूर के बाद एक नई नबूवत का दावेदार है, ऐलान करता है, इसकी गुलामी से छुटकारा दिला दीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।